welcome to Nursing for UPSC. This is the first lecture on ethics. This course we have designed as a combination of SIP and 4 laws strategy for the particularly ethics paper, and how ethics paper is, in my opinion, is different from GS 1 2 3 papers, and it requires separate preparation and separate answer writing skills. You know, so that's why I always teach this subject as a separate subject. Last year also I did it, and it will be a combination of SIP and 4 laws. Means SIP is a technique, as you all know, that we will be Pareto optimizing the topics. We will be taking out the makhan from the milk, and then we'll eat. First of all, we'll eat that makhan, and then we will focus on the milk, and then we'll focus on the buttermilk. So, how to identify that makhan, those Pareto optimized topics? For that, we will be using the PYQs. है ना? These are the PYQs. This is the file I shared on my channel. है ना? What specialty of this file is that we have not only categorized the questions as per the syllabus topics, but also we have identified the subtopics of the questions, so that we can identify what all topics are under the radar or under the focus of UPSC examination. है ना? With using this, we'll identify what topics to prepare. है ना? Then after identifying the topics, we'll be preparing a short notes on those topics. By short notes, I mean that we will not be making a per se one pager notes, and a one pager notes is a misnomer. We'll be preparing a last minute recall notes that will act as a trigger to think on the question and to ponder upon the question, and develop a new interlinkages and a new line of thinking for the particular question. For in that manner, we'll be preparing a question. And similarly for the case studies, there are different variety of case studies. We'll identify what all varieties are there, and what are the possible options. We'll have a repository of different types of options we'll be having in the particular case, and then how to narrate that option to the examiner, and how to evaluate the options, how to justify, how to take the decisions, and how to justify our decisions, and after taking a decision, uh, how to nullify the negatives of our taken decision. And all these things will prepare as per the PYQs only, because that is what matters. Personally, I myself have improved my score from 92 to 114 to 119 in the 3 consecutive years. So I can say that I exactly know what matters and what not, and how to jump your score from 92 90s to 120s. And Nikhil is a person who always got 105 plus marks in ethics, so he can tell you the bare essentials you need to do. I can tell you how to jump your score from 90s to 120s. What are the what different changes I made, and how those changes were implemented. I'll tell you this in the course. First of all, we'll identify that today will be covering basically this dimension, and essence of ethics and consequences of ethics. This is what actually is the summary of this entire topic. So we'll be first of all understanding why ethics is at all important. First, we'll understand why ethics is at all important, and if ethics is important, but then why don't we follow that ethics? If we know that ethics is so much important, and is so valuable, then why don't we follow those steps, and why don't we follow the righteous path? What stops us to follow that righteous path? If you have a clear understanding of what is right, and why don't we follow the righteous path, you will be able to argue in a better manner in the case studies, or in the whenever you are arguing for your decisions, because at that time you will be giving the practical righteous path. And what is the righteous path in this situation? For example, there are two types of righteous path. One is the ideal righteous path, second is the practical righteous path. So if you have a good understanding what is the essence of ethics, you will be giving the practical righteous path. Then after that, when you will be justifying your decisions, ki why didn't you follow this righteous path, hai na? What stopped you? You will be better, you will be able to better argue for your case, that why, because due to these limitations I have to follow this path, and I cannot follow the ideal righteous path. Okay, so this is this. And then there is a topic of consequences of ethics. Consequence of ethics is nothing but, if you have a good understanding of why ethics is important, and this is nothing. Consequence of ethics is nothing but a subpart of essence of ethics. If you know why ethics is important, and why we need to follow, what are the different choices we have in a particular situation, and why do we need to follow a particular choice, and why not other? If you have this understanding, then indirectly you are not doing nothing but you are evaluating the different options, and evaluation of options is uh, nothing but deciding what are the consequences of your options, what are the different variety of interpretations you can take out from your decisions. Now those are that is nothing but consequences. So consequences is nothing but a part of the essence of ethics.
So now we'll first of all, I'll give you the brief structure. First we'll tell see what are the types of questions are asked in the question examination. Then we'll study what is the essence of ethics. Then if essence is understood, then why it exactly matters, है ना? These are the things I picked up from the PYQs, है ना? Then if we understand that it is important, then why don't we act ethical? Then what is the meaning of integrity? Because integrity is derived from after this topic. Why don't we act ethical? Then we'll if we have understood that ethics is important, we are still we are not following the ethics, then what actually stops us, है ना? And if we understand that what actually stops us, we can build the ethical infrastructure, because somewhere or other, in some question or other, you are asked to build the ethical infrastructure in your either in your organization or in your personal life or in your family life, है ना? So you need to understand this also. Then there are other topics, we'll proceed as per the lecture. So let's first understand uh, what are the four types of question that are asked in the paper. First type is the puking type. Puking type means you eat them up and you puke them in the examination. You vomit, you eat the content and you vomit in the examination. These are direct questions, no zero brainer questions. You study them, you learn them, you analyze them, and you puke them. These are the questions like what is the voice of conscience, what is the crisis of conscience, and what is the code of conduct, what is the code of ethics. All these are standard questions. What do you mean by this probity and governance? All these are very standard questions. These are questions based on puking. Okay? These are the easiest question of the entire paper. And in this question, what matters is how different arguments or how different examples you are giving, that decides your marks in this question. Otherwise these are very easy questions, everybody is able to do them. Then second question are the linkages question. These are the tough questions. These are the actual tough questions which decides your marks in the section A paper. These are the linkages questions. For example, they will ask you what do you mean by happiness, and if you start dropping the idealistic answer na ki happiness is mean that my mind, body and soul all are in the sync, all these things, and if you drop all these idealistic answer, then you will get basic marks milenge. You will get idealistic marks only, you will not get the practical marks. Practical marks I consider as a 120 marks in ethics. We'll have to give the practical answer, because this is what was the one of the change I did when I jumped my score from 90 to 119. You'll have to drop what do you mean exactly, what do you mean by, you have to give for example, now as I am out of the aspirant stage, now I can think that one of the happiness for me is balancing public life, work life balance, my personal life and my professional life. If I am able to balance this, then I am happy. Okay? So you have to give the practical answers, you have to give the practical solutions, practical judgments, practical arguments. Second type of question, for example, in the PYQ was how crisis of conscience can be overcome using the use of emotional intelligence. Now you cannot you cannot puke the answer. You do not have any ready-made content for these such questions. How crisis of conscience is resolved using emotional intelligence? You will have to dissect this emotional intelligence. What are the components of this, and what exactly emotional intelligence consists of? And then you have to dissect this crisis of conscience, and then you will have to develop the linkages between all those dissection subparts. So this is what we call linkages question, and they are tough to score. Then the second is what do you mean by public interest? Now there is no standard definition of public interest. It will depend upon you, and it will depend upon your innovation skills. How do you define the public interest? Okay. Then the third type of questions are quotation based question. Quotation based questions means, let me see the everything is okay. Okay. Quotation based question means these are the three questions have come from the quotations, and as per me, the most basic mistake everybody does in the paper is from the quotation questions. Because if you carefully observe in the PYQs, there are three types of instructions in the quotations. One of the instruction is what does the following quote mean to you, and they are just asking what does it mean to you. Then the second instruction is what does it mean in the present context. They are not asking what does it mean to you, they are just asking what does it mean in present context. Answer will differ. If I give you the same quotation, and in both the instructions answer will differ completely, it will completely differ with respect to when you are telling what does it mean to you. You are not bound to give the examples. Okay? You are just there to explain the statement. For example, this is what I call as a explanation part of the essay. You when you write the essay, you explain the meanings of the word na, this is what this part of the question, this instruction of the question means. Then what do you mean in present context? Then we have to draw some examples, then the third
instruction is what does it mean to you in present context. They have clubbed both these instructions, and one type of instruction is this. So if we miss the instruction, then it is like we are missing the demand of the question. We are asked about our personal life, and we are asked about our academic life, and we are giving the answers about our love life. It is like this. Demand of the question was something else, and you are answering something else. So this is the fundamental mistake in quotation questions which people do. In essay paper, the instruction is same every year. So we generally we do not digress from that instruction. But in quotation question, uh, as far as I have observed, they generally change the instruction every year. Then there is a fourth type of questions, that is case studies. In case studies, what do we think is that we'll take the decisions, and the more ideal decision ours are, and the most good decision, most ethical decision we are taking, will get good marks. Believe me, the difference I took, the difference of this 92 and 119 was this only. I stopped taking the ideal decisions, and I was first change was, in the case study I started taking practical decisions. What was practical in the given situation? Second thing, whatever decision I was taking, I started justifying that decision. How we will justify our decision, that will come in the second and third lecture, where we will discuss determinants of ethics and philosophers and thinkers. Those this first lecture and second and third lecture, these three lecture will act as a foundation for your ethics, which will act as a foundation for justification of case studies, the justification of your decisions in case studies. Because if you are not well versed with first three lectures, then it will be tough to justify why you are standing against the sand mafia, and why you are transfusing the blood in the case of landslide case of 2023, and why are you violating the doctor rules, why are you violating the rules of the objectivity of the doctorship. Now sometimes the cases are of clear indication that the decision is clear. For example, this standing against the sand mafia, it is a right and wrong decision. We have to stand against the right sand mafia. It is clear what is right and what is not, what is wrong and what is right. It is clear from the case study. We do not have any iota of doubt what to do, but sometimes we have a conflict based case study. For example, there are so many case studies, most matlab, half of the if 6 case studies are coming in the examination, then at least 4 case studies are on the conflict. For example, this environment versus development conflicts. Okay, this conflict of interest, either you will be conflicting between your personal interest or a professional interest. Then this public service, this is a direct question. Then water crisis versus agriculture. National operations, and now you have to follow the your professional duty, or you will follow the compassion. Okay. EI at workplace, this is politics, this is a direct question. Work life balance, this is a conflict question. City transport dilemma, this is again a conflict question. So one question is that we have a clear we are clearly able to understand what decision to take and what decision not to take. Second is the conflict based decision. Then third questions are of course of action. What course of action will you take? Course of action is different from what are the options available to you. Course of action means that in course of action, the sequence of the steps matters a lot. You cannot change the order of the sequence. You cannot change the order of the steps you will take. The first step needs to be taken at the first step only, and it cannot be swapped with the other steps, step 2, step 3, step 4. But if you are asked to list down the options can be discrete. They do not have any relation with each other. They are independent of them. They are independent of each other, and they can be considered as a compartmentalized options. They do not have any linkages with each other. But when you are listing down the course of action, then each step is linked with the previous step. After you take the first step, second step will come only after you have taken the first step. Third step will only come after you have taken the first 2 steps. Fourth step will only come after you have taken the first 3 steps. This is what do we mean by course of action. So these are the general 3 types of cases that are asked. In first type of case studies, lecture 1, lecture 2, lecture 3, first 3 lectures will involve a lot of role, because we have to justify our decisions. Here we are not confused. We are clear that what to do, but how to justify that decision, that we are standing as the sand mafia, how we will manage our personal life, how we will manage our staff, how we will manage our professional life, how we will manage our career, and all these things are to be taken care of. If you do not address these things, you will not get marks. Again, you will get then 88, 80, 90s marks. Then now we'll come to the essence of the topic.
let's make it interactive session. If anyone wants to tell me what do they mean by what do they consider, why ethics is important, है ना? What is ethics? uh, in this I have written what is everything in the slide, so it will not be a brainer exercise, but still, if anyone wants to participate, बताओ. So, ethics simply means how to live your life by following certain rules. ठीक है, सही है. और बताओ दिशांत, अनमोल, अविराज. अविराज न्यू पर्सन, बताओ. So studying of this right and wrong, or in this context of right and wrong, whatever action we are taking, whether it is right or wrong, and this is ethics. ठीक है. और अब इसमें देखो, विल टेक आउट द PYQs, है ना? As I always tell that we will get a hint from PYQs what is ethics. We do not know what is ethics. We'll ask PYQ that tell us what is ethics. मैं जो ये वाली स्लाइड है ना, नेक्स्ट वाली, वाई एथिक्स मैटर्स, है ना, ये मैंने वहीं से निकाली है सारी की सारी स्लाइड. ये अपने आप मैंने कहीं से नोट्स नहीं बनाए, सब PYQ से निकाला हुआ है. अब देखो, इसमें एसेंस ऑफ एथिक्स मतलब एथिक्स क्या है, ठीक है? तो यहाँ से हमें पता चलता है. पहले हम देखते हैं कि चलो ये पूछ रहे हैं कि जस्ट और अनजस्ट, ठीक है? तो अच्छा, एक तो यही से समझ आ गया मेरे को, जस्ट और अनजस्ट होता है कुछ. देन मोरली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एंड मोरली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ठीक है? एथिकल डिसीजन मेकिंग मतलब डिसीजन मेकिंग में कुछ मदद होगा, है ना? तो उसके बाद देन एप्लीकेशन है, डिबेट करनी होती है. अब सीक टू प्रोमोट इन पब्लिक ह्यूमन लाइफ, ठीक है? कुछ कुछ मतलब है उसका, कुछ इंपॉर्टेंस है उसका, ठीक है? तो ह्यूमन लाइफ क्या होती है, ह्यूमन लाइफ में क्या क्या काम करते हैं हम, ठीक है? रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, दिस आई गॉट न्यू वर्ड, है ना? सो लाइकवाइज विल पिक अप द वर्ड्स फ्रॉम द PYQs and build our answer. As I always tell in ethics, SIP session and for law session both, that we will do nothing but recycling of PYQs. जो PYQ ने हमारे मुंह पे फेंका है उसी के मुंह पे we will drop those words, ठीक है? falsehood takes place. चलो ये वाली भी बात आई कि there is no permanency of ethics, है ना? then ends justify means crisis of ethical values in modern life. चलो यहाँ पे समझ आया कि क्राइसिस हो रहा है कुछ, मतलब मॉडर्न लाइफ में if anything wrong is happening then it is due to ethics. देन मोरल वैल्यूज एंड ऑब्लिगेशन, चलो एक गवर्नमेंट के हिसाब से एथिक्स हुआ, एक मार्केट के हिसाब से एथिक्स हुआ, एक इकोनॉमी के हिसाब से एथिक्स हुआ, ठीक है? चलो फिर एक सोशल लाइफ के हिसाब से एथिक्स हुआ, एक ह्यूमन लाइफ के हिसाब से एथिक्स हुआ. फिर ह्यूमन कंडक्ट, चलो ये तो ह्यूमन लाइफ ही हो जाएगा. एनवायरनमेंट के हिसाब से एथिक्स हुआ. एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग ना व्हाट आई एम डूइंग, कि एक गुड ऑफ ऑल के हिसाब से हुआ, गुड ऑफ वन के हिसाब से हुआ. तो दीज आर द डायमेंशंस व्हिच विल टेल अस व्हाट इज द सेंस ऑफ एथिक्स. सो now I've got the idea what all things to prepare, what all things to see while I'm making a notes. So I'll give you some things. It is the standards of right and wrong, ki what is right and what is wrong. For example, the session was scheduled at 7 p.m, hai na? If I have to come at 7 p.m or I have to come at 7:05 or at 7:10, this is what is right and what is wrong in this. So it is as per the standards, ki the right action is that I have promised all of you that I'll come at 7. Then it will be a right decision, considered as a right decision if I come at right 7 p.m. Else it will be a wrong decision. What is responsible, irresponsible? Same example will apply, है ना? Caring and uncaring, whether I care for or not, whether I care for my enrolled people or not, whether I am caring, I have a caring attitude or uncaring attitude. Fair and fair, ठीक है? So these are the standards of right and wrong, responsible, irresponsible, caring, uncaring, fair and fair. This is the tool where we will distinguish that what is responsible and what is irresponsible. The thin line between responsible and irresponsible is, it tells us what is ethics, tells us the importance of ethics, है ना? Then this is a name of person in the public administration, Swara. He tells us about that ethics tells if a person is ethical, then he becomes a responsible administrator. He talks about the concept of responsible administrator. Who is responsible administrator? He says that the person
since administration involves that decision making that involves lives of other people, है ना, so their decisions impact have more weightage than the personal life decisions, because we are impacting others life only. By taking decisions in our personal life, we are just impacting our own life, or at max our neighbor's life, or our at max our family's life. But when we are administrator, we are taking decisions for thousands or lakhs of people. So that's why it is more important concept of ethics is becomes more important in when we are talking about administration. So Swara talks about the term talks about the concept of responsible administrator. Who is responsible, who is not. So he'll administrator has to develop a standards of right and wrong, caring and uncaring, fair and unfair, responsible and irresponsible. Then we can distinguish who is the responsible administrator and who is not. Then the second person, Socrates, talks about ethics as a that he tells us how we ought to live. हमें जीना कैसे है, जिए कैसे, how we ought to live. कि एक है कि you have a no purpose of life, है ना. एक है you do not, you are just living a life and you are not contemplating कि what exactly happened, if any mistake happened in your life, why did it happen, and how can we rectify it, and all these things. How we ought to live, should we have any motto in our life, should we have any goal in our life, है ना. जिंदगी जीने कैसे है. As per Socrates, ethics is nothing about कि जिंदगी जीनी कैसे है, how we ought to live. मतलब कि how will you take the daily life decisions, how will you impact your future, how will you analyze your past. Then why I'm giving the names of these thinkers, है ना, because somewhere or other you can use them to either when the question comes as a direct puking subpart of the as a puking dimension of the section A question, or sometimes we'll have to use these arguments in further questions, in case studies or in section A. Then there is a philosopher, Immanuel Kant. He talks about what to do. For example, you have a situation in your life, and then ethics tells us what to do in this situation and what not to do. For example, there is a landslide in the Himachal region. You are a doctor, you are a DM of the district, and you are a professional doctor also. Now there is a pregnant lady who is suffering from the labor pain, and it is a 2 a.m. at night, and landslide has occurred. And by the doctor's manual, you cannot transfuse the blood, but based on the compassion and empathy, if you transfuse the blood, her life can be saved. So in this situation, what will you do? Kant tells us that if we have a good understanding of ethics, if we have a good understanding of essence of ethics, then we will exactly know what to do and what not to do. We are always involved in a decision making mode. हम अभी मान लो मैं यहाँ पे लेक्चर दे रहा हूँ, तो मैं लेक्चर दूं या फिर मैं देते देते चला जाऊं. ठीक है, अगर मैं अभी बैठा हूँ, इफ वी हैव एनी, मान लो मैं सिगरेट पीने की आदत है, तो सिगरेट पीऊं या ना पीऊं. ठीक है, अभी मान लो मम्मी का कुछ काम करूं या ना करूं, पेरेंट्स का कुछ काम, बच्चों की ड्यूटी जो मेरे बच्चे की है उसको ड्यूटी निभाऊं या नहीं निभाऊं. ठीक है, पार्टनर है, पार्टनर की ड्यूटी निभाऊं या नहीं निभाऊं, लॉयल्टी मेंटेन करूं या नहीं करूं, पेशेंस मेंटेन करूं या नहीं करूं. ऑल दीज आर नथिंग बट आप क्या कर रहा हूं, आई एम ब्रिंगिंग इन द वैल्यूज पार्ट, है ना. सो इफ यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग, as I told you, right and wrong, responsible, irresponsible, caring, uncaring, fair and fair, what is fair, what is not fair, what is responsible, what is responsible. If you have a good understanding of that, then ethics will guide you what to do. Because if you carefully observe, we are always in a decision making mode. We are always in decision making mode, है ना. Some मतलब there cannot be any moment in your life where you are not making decisions. And there was this essay also, I think in 2023 or 24, है ना, 24 I think it was, yeah 23, कि wrong decisions, the person who maintains neutrality at the time of crisis is a more wrongdoer, है ना, ऐसा कुछ करके था कि जो गलत करता है, जो न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, he does more harm than a person who is doing the wrong decisions, है ना. That is nothing but ethical decision making. Either we take the right decision, or we take the wrong decision, or we do not take the decision at all, है ना. For example, Bhishma, है ना, in Mahabharata, what did he do? He did not take any decision when the disrobing of Draupadi was happening. So that was actually doing more harm to the society than Duryodhana was doing. So at every moment in our life, we are always in a decision making mode, whether to do this or or not to do this, ये करें या ना करें.
जाएं या ना जाएं, खाएं या ना खाएं, समझ रहे हो, एनीथिंग, वी आर ऑलवेज इन अ डिसीजन मेकिंग मोड. सो if we have good understanding of ethics, Kant tells us that we will when good people do nothing about the, हाँ वही है वो, there are lot many quotes about this situation. I wrote this essay personally in the exam when I wrote somewhere I have मतलब I have a good understanding of this कि a person who maintains neutrality at the time of the crisis, है ना, at the time of moral crisis, he is actually doing more harm. Why? Because when good people are staying quiet na, then the wrongdoers, they get the moral boost. They stop, they think that nobody is stopping us and we can do whatever we want to do. So there are no checks and balances to the wrong people, and if there are no checks and balances to the wrong people, it sends a wrong message to the society, and it acts as a bad precedent for future. So that's why a person who is doing wrong, it can be correct, he can be corrected at times, है ना, we can stop him, we can correct him. But if a good person is maintaining neutrality, it was not expected of him to maintain neutrality at that time, because we were thinking that he's a person who will stop all this. So that's why his impact is more. Then C.I. Lewis, he again talks about same thing, but I am giving you the different names, है ना. C.I. Lewis, he also talks about what is standard of right and wrong. Okay, for example, Immanuel Kant, you can think about Lord of Rings, है ना, the ring that gave the power to become invisible, and whether to use that power or not. If you have power, whether to use that power for in a responsible manner or a irresponsible manner. If you have good understanding of ethics, if you have good understanding what is essence of ethics, then you will take good decisions. So everything what you do is related to ethics. It tells us if we have good ethics, we will do right decisions, else we will do wrong decisions. Similar things are with the Socrates, C.V. Lewis, and NEP 2020. It also talks about the character development. What should be the character of individuals, and how what is a desirable character and what is an undesirable character, and how to develop that. Okay. Now we will come to first I'll ask from you why morality matters. पहले बताओ, if anybody wants to participate, why morality matters. क्यों अच्छा है, मतलब क्यों करना है एथिक्स भाई, एवरीबडी वांट्स ना, ये आई एम नॉट टॉकिंग इन एयर ना, ऑल दीस क्वेश्चंस हैव कम इन पीवाईक्यूज. इफ यू ऑल रिमेंबर 2014 में पीवाईक्यू था क्लियरली, आई गेस you have just joined the services, and your friend is asking that why you do, you are a lone person in your organization who is ethical, how it will help, है ना, all these things. It is one of the issues. Ethical conviction, देखो एक तो ये आ गया, ये क्वेश्चन ethical conviction का ही है, ठीक. If you have good understanding why morality matters, then you will argue in a conviction manner. Then there are other questions also. It is a PYQ. It has been asked 2 times in case studies that what suggestions will you give that to that person? And all these ethical arguments I got from the PYQs only. I picked them from the PYQs. बताओ, participate people. Sir, to distinguish between what's wrong and what's right. ठीक है, और डिसीजन मेकिंग के रिस्पेक्ट में हो गया कि इट हेल्प्स यू टू डिस्टिंग्विश व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, व्हाट डिसीजन टू टेक, व्हाट डिसीजन नॉट टू टेक. ठीक है, Yes. और It acts as principle for guiding the individual or community, or we can say as a group of people. और बताओ, वही इसमें देखो, जितना अभी सोचोगे ना उतना ही तुम्हारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स आएंगे. ये देखो, ये रहा क्वेश्चन मैं बोल रहा था ना, ethical conduct in public service. Suppose one of your close friends who is aspiring for civil service comes to you for discussing some of the issues. In present times, many when an ethical environment is quite prevalent, individual attempts to stick to the ethical principle, it may cause lot of career. अब देखो वो problems बता रहा है तुमको. It may cause hardships,
ठीक है, अब देखिए ये सारी यहीं से मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, यहीं से उठा के इट में कॉज हार्डशिप्स, why should we not be pragmatic and follow the path of least resistance and become do this, okay? Then second thing he argues, why so many people, अब बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो अकेले तुम करोगे तो why small minority से क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, तो इसको भी तुम्हें इंक्लूड करना है। फिर उसके बाद they are going rather ineffective and bound to this, ठीक है, fussy about ethical consideration, hamper economic progress, चलो एक आर्गुमेंट ये भी आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद अंडरस्टैंडेबल, वी शुड नॉट गेट इन ऑल ग्रॉसी दिस एक्सेप्टिंग स्मॉल ग्रेटिफिकेशंस, ठीक है, छोटे-छोटे चीजें करोगे तो क्या फर्क पड़ता है। अब बताओ, अब देखो, अब तुम्हें समझ आ गया कि अब ऐसे क्वेश्चन का आंसर तुम कैसे करोगे, बताओ मेरे को। अगर सर तुम्हारे नहीं है ना जिस आर्गुमेंट्स, तो तुम नहीं कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन का आंसर। सर जैसे ये अपना आपने ये वाला क्वेश्चन दिखाया, इसमें क्या बोलते हैं, सारे स्टेक होल्डर इंक्लूड कर देंगे हम, जैसे अपने चिल्ड्रन हो गए, वाइफ होगी, पेरेंट्स हो गए, फिर सोसाइटी में इमेज होगी, आगे क्या करोगे उसको लिंक करके, बताओ, स्टेक होल्डर का नाम लेके क्या करोगे। मतलब हाउ इट्स जेपरडाइजिंग एवरीथिंग। ठीक है, चलो तुमने ये बोल दिया कि मेरी कॉन्सिक्वेंसेज बताने लगे अपनी फैमिली पे, सोसाइटी पे और उस पे। आगे और बताओ, 2 आर्गुमेंट हो गए, डिसीजन मेकिंग का हो गया, कॉन्सिक्वेंसेज ऑन सोसाइटी हो गया। आगे सर कैरियर पे कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा? पर्सनल हो गया, वो तो कॉन्सिक्वेंसेज में आ गया, इट कैन बी क्लब, वो आर्गुमेंट नहीं दे रहे हो तुम, अब तो तुम एविडेंस देने लगे। वो तो पर्सनल लाइफ तुमने बता दिया ना कि कॉन्सिक्वेंसेज पर्सनल लाइफ के होंगे, सोशल लाइफ के होंगे, ठीक है, हो गया। आगे स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ठीक है, गुड, ठीक है, सोसाइटी डज नॉट डिस्क्रिट, हाँ, सोसाइटल बेनिफिट होगा, ठीक है, चलो सर हो गया। सोशल जस्टिस को इंक्लूड कर सकते हैं? ठीक है, चलो, हाँ, चलो बेनिफिट की बात करने से सोशल जस्टिस होने लगेगा कि लोगों का, हाँ, सोशल जस्टिस वैलिड पॉइंट है। चलो आगे, और 3 आर्गुमेंट्स हुए। अब देखो मैं बहुत सारे आर्गुमेंट, 15-16 आर्गुमेंट दूंगा। अब अलाइन कर सकते हैं हम जो मेन मेजर जो सोसाइटी का फ्रेमवर्क है, अगर हम मॉरलिटी को फॉलो करेंगे। नहीं तो अगर एग्जैक्टली, नाइस, अनमोल ने भी यही बात बोली कि हार्मनी और अनार्की, ठीक है, चलो ये पॉइंट मैंने भी लिखा हुआ है। और सर अपना पॉलिसी पैरालिसिस हो सकता है। ठीक है, और बताओ, और सोच, मतलब तुम समझ रहे हो ना मैं क्या करवा रहा हूँ, व्हाई आई एम डूइंग दिस। सर ये एलीट मैं तुम्हें कैप्चर। हैंडमेड, तुम्हें नोट्स दे सकता हूँ मैं इस चीज के। अगर मैं नोट्स दूंगा तो फिर वही काम होगा जो सब हो रहा है मार्केट के अंदर। आई एम नॉट हेयर टू डू द सेम थिंग्स एज मार्केट इज डूइंग। मैं वो तुम्हें बताने आया हूँ जिससे मार्क्स आते हैं, जिससे मेरे आए थे जो काम करने से। तो सोचो, मतलब जितना सोच सकते हो, अगर अभी सोचोगे तो क्या होगा एग्जाम में, फिर ये कभी नहीं बोलोगे कि पेपर छूट गया। बताओ, और सोचो। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, पीवाईक्यू से उठाएंगे फिर टॉपिक्स हम, कि क्या है एथिक्स, क्यों करना है। देखो अभी तुमने बोला, तुम लोगों ने अभी तक क्या आर्ग्यूमेंट दिए मुझे, एक बोला कि एथिकल डिसीजन मेकिंग, ठीक है, दूसरा तुमने बोला सोसाइटल हार्मनी, तीसरा तुमने बोला सोसाइटल सोशल जस्टिस, चौथा तुमने अभी एक और किसी ने बोला था कि पॉलिसी पैरालिसिस। पॉलिसी पैरालिसिस, ठीक है, चलो वो पॉलिसी एलीट। पैरालिसिस वो वही है, सोसाइटल वाला ही पार्ट आ गया, एक ही चीज को घुमा फिरा के बोल रहे हो सब, कि सोसाइटी के लिए सोच लिया तुमने, अपने लिए सोच लिया तुमने, ठीक है, और नेशन के लिए सोच लिया, वो तो अब ठीक है एक्सपैंड करते रहो, चलो नेशन भी डाल लो, लेकिन वो नया आर्ग्यूमेंट नहीं है। और डिफरेंट, मतलब समझ रहे हो ना, अगर तुम एक ही बात को घुमा के लिखोगे तो कुछ, यू आर नॉट गिविंग वैरायटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, वी नीड टू हैव वैरायटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। सोचो सिलेबस के, चलो अब तुम्हें मैं हिंट देता हूँ, सिलेबस के हिसाब से सोचो। सर इसमें क्या बोलते हैं, टैक्स को रिलेट कर सकते हैं? ठीक है, टैक्स, ठीक है, वो हो गया, सोशल एस्पेक्ट ही हो गया। क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस। क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस, बहुत बढ़िया, ये पॉइंट है, मॉरल आइडेंटिटी देता है तुमको, तुम्हारे जीना आराम कर देगा, तुम्हारे रात को नींद नहीं आएगी। मतलब मैं तो ऐसे ही लिखता था कि भाई मैं अपनी बेटी को शक्ल नहीं दिखा पाऊंगा, मेरे को रात को नींद नहीं आएगी, मैं घर वालों को क्या शक्ल दिखाऊंगा, मैं हर एक एक सेकंड मेरा जीना दुश्वार हो जाएगा। ऐसे ऐसी इतनी कन्विक्शन से लिखोगे तब समझ आएगा उसको कि हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस। और बताओ, चलो ये वाली बहुत अच्छा आर्गुमेंट था, और बताओ। इसको बोल सकते हैं कि जो हमारी पास्ट में अपब्रिंगिंग रही है उसके अगेंस्ट जो मैं ये कर रहा हूँ कि वो उसके वो क्राइसिस ऑफ प्रिवेटिव। कॉन्शियंस ही है, क्राइसिस अच्छा ऑफ अच्छा, कॉन्शियंस है वो, कि तुम्हें ठीक है। भाई इट इज एन अवर्सिव स्टेट, इट इज कॉजिंग डिस्कम्फर्ट टू यू, है ना, इट वाज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, बट यू आर डूइंग अगेंस्ट दोस थिंग्स, है ना, सो यू विल हैव अ क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस। वो वही एक ही बात है वो। ठीक और है। बताओ। आर्यन,
अविराज और ये दिशान, तुम भी बताओ कुछ। आद्या। चलो अब आते हैं पीवाईक्यू पे, फिर मैं बताता हूँ कि पीवाईक्यू से देखते हैं पीवाईक्यू क्या बोल रहा है, हमें एथिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू पहले तो बोल रहा है कि भैया सोशल मीडिया, एक तो हमें ये डिजिटल, ये हमें डाटा गैदरिंग होती है, मतलब ठीक है कि चलो ये डाटा गैदरिंग नहीं है तो अलग चीज़ है। एक तो जस्ट अनजस्ट पता चलता है हमको, जस्ट अनजस्ट मतलब वो सोशल जस्टिस वाला काम आ गया, बात आ गई कि जस्ट क्या है अनजस्ट क्या है। अनजस्ट और अनजस्ट को यू कैन एक्सपेंड टू द इंडिविजुअल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, नेशनल डायमेंशन, और बस एक ही बात है वो जस्ट अनजस्ट इज अ वन कंसेप्ट, ठीक है। चलो आगे आते हैं मोरली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। अब मोरली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ये वही है, दो एस्पेक्ट में हो सकता है, एक तो पर्सनल लाइफ में और एक प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ मतलब प्रोफेशनल कॉर्पोरेट भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। एथिकल डिसीजन मेकिंग, ये एक पर्सनल डिसीजन मेकिंग है, ये वाला कोई, ये वाला भी पता नहीं किसी ने बोला था या नहीं, कि एक पर्सनल डिसीजन मेकिंग भाई मैं खाना खाऊं या नहीं खाऊं। मेरे को मान लो मैंने आई हैव डिसाइडेड कि आई विल नॉट स्मोक सिगरेट, है ना, आई विल नॉट स्मोक, है ना, आई विल नॉट ड्रिंक। तो ये मेरी डिसीजन मेकिंग है ना। एथिक्स इज टेलिंग मी व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू इन माय डेली लाइफ। डेली लाइफ डिसीजन मेकिंग मुझे बताता है। जजमेंट वाली बात आ गई कि व्हेन आई एम डीलिंग विद अदर पीपल में या तो कॉर्पोरेट में होऊंगा या फिर मैं गवर्नमेंट में होऊंगा, और कैसे, या फिर मैं अपने पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है व्हेन वी डील विद अदर पीपल। और देखते हैं वो क्या बोल रहा है ये रैशनल डिसीजन, चलो ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, देखा, अब ये नई नई टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, एक ये भी आ सकता है अप्लाइड एथिक्स। तो उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये आ गया ऑर्गेनाइजेशन एंड सिस्टम, ठीक है, ये वाला एलिमेंट भूल गए हम, ठीक है। ह्यूमन लाइफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, ये किसी ने नहीं बोला। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होते हैं भाई, कि आई एम हैविंग अ कॉन्फ्लिक्ट, कि अपनी मम्मी की सुनूं, अपनी बीवी की सुनूं, किसकी सुनूं। अगर मेरे को सत्य पता होगा ना तो मुझे पता होगा किसकी सुननी है। और जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होगा पर्सनल लाइफ में, मेरी बीवी के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा, माँ के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा, मुझे पता होगा कैसे हैंडल करना है उसको। क्यों? क्योंकि आई एम हैविंग क्लैरिटी, डे टू डे फंक्शनिंग में मदद करेगा। उसके बाद पब्लिक लाइफ की प्रिंसिपल्स, चलो। उसके बाद फॉल्सहुड, चलो ठीक है। नैरो परसेप्शन ऑफ गुड लाइफ, चलो, कि जो डेली लाइफ में हम गलत चीजें करते हैं वो, ठीक है, चलो ये तो वही आ जाएगा कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स पे आ जाएगा वो बात। गवर्नमेंट के लिए क्या मदद है, मार्केट के लिए क्या मदद है, इकोनॉमी के लिए क्या मदद है। उसके बाद सबसे बड़ा मैंने यहाँ से हेडिंग उठाई थी कि सोशल वेलबींग एंड ह्यूमन वेलबींग। पीवाईक्यू ने सीधा तुम्हें बोल रखा है सोशल। अब जब अगली बार क्वेश्चन आ रहा है ना, अब ये क्वेश्चन आता है अगली बार, मान लो हाउ एथिक्स हेल्पफुल, ये देखो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ये चीजें, है ना। देखो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी आया था 2023 या 24 में आया था ये वाला, है ना। ये क्या आ रहा है, तो यहाँ पे लिखो भाई। तुम्हें पीवाईक्यू ने हेडिंग दे रखी है सोशल वेलबींग, ह्यूमन वेलबींग। सोशल वेलबींग की लोग बात कर रहे थे तुम लोग, ह्यूमन वेलबींग भी है। ह्यूमन वेलबींग में क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस जिसने बोला वो ह्यूमन वेलबींग है, मेरे खुद के लिए अच्छा है वो। और देखो सिविलाइज को सोशल एग्जिस्टेंस, ये वही हार्मनी वाली बातें आ गई, सिविलाइजेशन की बातें आ गई, ठीक है। अब आते हैं, देखो अब मैंने क्या हेडिंग किया था, अब इसमें मैंने एक दो हेडिंग और जोड़ी थी, वो मैंने और नीचे जब मैं केस स्टडीज वगैरह एनालाइज कर रहा था तो मैंने एक आधी हेडिंग और जोड़ी थी, बताता हूँ क्या जोड़ी थी। देखो हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पॉइंट दिख गया, ठीक है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मैंने एक हेडिंग बनाई। सोशल वेलबींग का पॉइंट दिख गया, उसकी एक हेडिंग बनाई मैंने, ठीक है। फिर एक ह्यूमन वेलबींग का दिख गया, फिर एक फोर्थ हेडिंग मैंने बनाई थी, अगर हम गलत काम करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं, कॉस्ट ऑफ एनएथिकल बिहेवियर, ठीक है। ये भी एक हेडिंग थी यहाँ पे, कहीं तो थी, कॉस्ट थी ना, कि कॉस्ट होगी अगर हम गलत काम करते हैं, तो ये क्राइसिस, ठीक है। तो ये 4 हेडिंग। अब इसके अंदर अब मैंने क्या देखा, सोशल के अंदर एक तो सोशल हार्मनी होगी तुम्हारी, ठीक है। अगर मान लो लेट से आई गिव यू द एग्जांपल, करोल बाग का कभी तुमने वो देखा है चौराहा, करोल बाग के चौराहा पे सोचो अगर ट्रैफिक सिग्नल ना हो तो क्या होगा। अगर किसी को ये नहीं पता कि हाउ टू ड्राइव द कार, हाउ टू व्हेन टू ड्राइव, व्हेन टू स्टॉप, व्हेन टू पास ऑन, है ना, अगर नहीं पता सबको, तो सोचो उस चौराहा पे क्या होगा। सो इट ब्रिंग्स हार्मनी बिटवीन द पीपल। अगर अभी हम बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, मैं अपने घर पे बैठा हूँ, मुझे पता है मेरा गेट खुला है, कोई भी अंदर आके, नो वन एल्स, नोबडी विल किल मी, है ना। क्यों? क्योंकि आई नो दिस इज, देयर इज अ बेसिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अस कि हाँ तुम मेरे को हार्म नहीं करोगे। हार्मनी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि अब क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, कि जो तुम अभी बातें कर रहे थे सोशल जस्टिस वाली, कि वी कैन इम्प्रूव, हम लोगों की भलाई कर सकते हैं अगर हमें पता होगा तो, ठीक है। हॉब्स क्या बोलता है, हॉब्स बोलता है कि लाइफ, जैसे करोलबाग वाला तुम्हें बोल रहा हूं, कि लाइफ इन सच अ वर्ल्ड वुड बी पुअर, ये लिख लो अगर तुम्हें लिखना है तो, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। एक तो पुअर होगी,
एक नेस्टी होगी, एक ब्रूटिश होगी, एक शॉर्ट होगी, छोटी भी होगी, गंदगी भी भरी पड़ी होगी उस जिंदगी में। अगर कोई किसी को नहीं पता ना कि अपना काम क्या करना है, बिकॉज वी आर अ सोशल एनिमल, वी कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन, वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एंड दैट इज व्हाट द क्वेश्चन ऑफ इंटरडिपेंडेंस कोटेशन 2021 में आया था आई गेस, और ऐसे में भी आ चुका है कि वी आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, वी कैन नॉट एस्केप एंड वी कैन नॉट लिव अलोन. So since we cannot live alone, we have to bear with other. If whether we like them, we like each other or not. And if we like each other, then it is good. We will maintain harmony. If we do not like each other, and if एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते, and we are not also having ethics, तो होगा क्या? मैं उसका बुरा करूंगा, वो मेरा बुरा करेगा. मैं उसको मारूंगा, वो मेरे को मारेगा. But still, अगर हमारा कोई दुश्मन भी होता है, we still maintain the dignity. समझ रहे हो ना? एथिक्स नहीं होते तो सूर्य अस्त होने के बाद शाम को जब सूर्यास्त हो चुका है, उसके बाद वॉर नहीं होता था महाभारत में. क्यों? दिस इज द एथिक्स कि तुम्हारा दुश्मन भी है बट स्टिल सूर्यास्त हो गया, यू विल नॉट अटैक हिम बिकॉज ही इज नॉट प्रिपेयर्ड. पीठ के पीछे यू विल नॉट वार नहीं करोगे पीठ के पीछे. तो हॉब्स बोलता है, यू कैन लुक फॉर हिज कोटेशन ऑन इंटरनेट, लाइफ इन सच अ वर्ल्ड वुड बी पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट. ठीक है. अब सेकंड आता है ह्यूमन वेलबींग. एक तो आइडेंटिटी देता है मुझे, मेरे को पर्सनल आइडेंटिटी देता है भाई. मैं हूं पंचुअल आदमी. मैंने टाइम बोला तो मैं टाइम पे आऊंगा. अगर मैं टाइम पे नहीं आया तो मेरे को खुद को लगेगा कि यार मैं अपनी जिंदगी से धोखा कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, है ना. तो बेसिकली इट विल बी अ क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस. एंड व्हाट डू वी मीन बाय क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस? वी विल नॉट बी हैविंग अ peace at our life. It will be a state of discomfort. We will be feeling discomfort, will not be in a comfortable zone. We will still, because we are nothing but a product of our thoughts, and if our thoughts are disturbed, our life will be disturbed. So gives us the moral identity, है ना, कि I am a punctual man, I am a man of my principles, I am a person who once I have committed, I'll deliver, है ना. So all these are nothing but part of my identity. Second is choice making, है ना, जो तुम सब लोग बोल ही रहे थे कि डेली लाइफ डिसीजंस, वी आर ऑलवेज इन अ डिसीजन मेकिंग मोड. जैसे कांत सेड व्हाट टू डू, इट टेल्स अस व्हाट टू डू. अभी मैं सेशन दूं या नहीं, ये छोड़ के भाग जाऊं, खाना खाऊं या नहीं, भिंडी बनी है भिंडी खाऊं या नहीं, तोरी बनी है तोरी खाऊं या नहीं, मम्मी ने इतने प्यार से बनाई है उसको कंसीडर करूं या नहीं, या सिर्फ अपने को ही देखो, मेरे को तोरी पसंद नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा. समझ रहे हो? डेली लाइफ डिसीजंस. रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है, रिलेशनशिप विद योर मदर, विद योर पेरेंट्स, विद योर स्टाफ, विद योर कलीग्स, विद योर सीनियर्स, विद नेबर्स, ऑल काइंड ऑफ रिलेशनशिप मैनेजमेंट, दैट इज मेंटेन्ड ड्यू टू एथिक्स. अगर एथिक्स नहीं होगा, यू विल नॉट मेंटेन द डिसीजंस. all those talks of loyalty and all these are nothing based on ethics, है ना. रिलेशनशिप मैनेजमेंट पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, प्रोफेशनल भी हो सकती है, एंड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीपल भी हो सकती है. रिलेशनशिप कुछ भी हो सकती है. इट कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी टेंजेंट. Second is decision making and goals. For personal life, if I am a person of values, principles, I'll establish a goal, and if I have established those goals, because I have a value of a person of principles, I'll have to achieve that goal, else I'll be devoid of my moral identity. Then we become morally sensitive से क्या होगा कि this is linked to the quality of social well-being, है ना, social justice वाला aspect. At least if I have a good understanding of ethics ना, तो मुझे पता होगा कि if I am standing in the queue in the bank and old lady comes and she asks me to fill up the form in the bank, I'll not have a feeling of pity on her. I'll think कि हाँ यार, I'll become sensitive कि she's having a special needs, she can't do it, so I have to do it. I'll help her. When you are crossing the signal and a person who's not able to see comes, you'll help him. You will become sensitive to the needs of the people, sensitive to the rights of the people, है ना. So it makes you empathetic, compassionate, and accordingly whatever feeling you want to attach, it makes you sensitive with respect to consequences of your ethics. What will be the consequences of on your own life, your family life, your relationship, any relationship with the government, with the people, and if you are a government servant, what will be the consequences on the people? If you are a corporate employee, what will be the consequences on your staff, on your boss, on your colleagues, on your customers? Then the consequences वो बता दिया, सेंसिटिव है ना. consequences किसी पे भी हो सकते हैं.
consequences, whenever we are thinking about the consequences should be thought in on the lines of stakeholders. Involve as many stakeholders as you can. अभी कोई बोल रहा था ना कि stakeholders के थ्रू इंक्लूड कर लेते हैं उसको, किसी क्वेश्चन में बोल रहा था, है ना, उसी में केस स्टडी वाले में बोल रहा था. तो ऐसे क्वेश्चन में वी कैन इंक्लूड द व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज कि व्हाट इफ वी डू नॉट डू दिस. ठीक है. then comes the first, let's discuss public administration part. In public administration, as we are involved, we are in a decision making mode, and our decisions will impact others and not only the limited set of people, since so that that decision carries more weightage in comparison to our personal decision. That's why Paul Appleby said that public morality matters more than personal morality. Why did he say this? Because in public life you are making decisions for huge number of people, and you are not only impacting, if we count it by the numbers, you are impacting lakhs of people and not only few set of people. That's why public morality matters more, है ना. We can include the argument of Swara, है ना. You can look for the book written by the Swara. He talks about responsible administration. I think the name of the book is Responsible Administrator only. Then public interest. What is in the interest of public, है ना. Governance elements, some of you people brought in, है ना. So these are nothing but the governance aspects. कि we are delivering, we are at a pedestal of delivering the services. We are maintained to not only deliver the quantity of services but also quality of services, and for in that process we'll have to maintain public interest. What is public interest? That can be interpreted in different situations differently. Public trust, we are trustees of public trust, है ना. Entire governance process is working on the trust. If we do not have trust, for example, government said that we'll reduce the rates of GST, है ना, and we will bring GST 2.0 reforms. Government said this on 18th, I guess, and it was implemented on 24th. Why did you believe this? Because you have a trust on them कि yes, उन्होंने बोला तो करेंगे. It is entire governance process is built on trust. If the trust element is gone, you cannot have a governance. Forget the good governance, forget the ethical governance. You cannot at all have a governance process. मतलब जो ट्रांसफर का प्रोसेस है क्वालिटी सर्विस डिलीवरी का, वही नहीं हो सकता. ठीक है. Then the issues, public issues, any kind of issue, political issue, social issue, environmental issue, economic issue, any issue, all these issues, if you have good understanding with respect to ethics, with respect to environment, with respect to economy, with respect to polity, then you will, if you have good understanding with respect to criminalization of politics or any political issue, any social issue, Sabrimala or live-in relationship, anything, and environmental issue, this Andaman Nicobar controversy, if you have a good understanding what is right and what is not, how we ought to live, and if you have a understanding of what are the standards of responsible behavior and irresponsible behavior, if you have understanding of this, you will be a good administrator. That will be good for the people, that will be good for the public administration. Second, then the fourth argument is glue, and it acts as a glue. For example, why do we say that we should pay taxes? It is a part of the social contract, है ना, कि we will give them the rights, we will give them the resources so that they give us the rights to exercise. We'll give them the tax and the votes, and they will provide us the services, है ना. So if we do this, then there is a glue between government and us as a society, and that glue will if that glue functions properly, है ना, then you can understand, then you can clearly see that difference between India and Pakistan, है ना, or the difference between this Japan and India. All those things, if we have a good understanding between society and government, then we have a good governance process. ठीक है. Now, if any other point you can think of why morality matters, tell me. बताओ. और कोई रीजन तुम्हें लगता है कि why morality matters, why morality is important? I am pretty sure any reason you give will fall under any of the four headings given here. If you have any another heading, you can tell me. अच्छा, cost of unethical behavior रह गया. Cost of unethical behavior means कि you will have the cost
you will have the negative consequences if you do not follow ethics. For example, you will be under guilt, you will lose the trust, you will lose the reputation of the company or the organization, है ना. For example, I always explain this with the example of 50 rupees bribe. For example, all of you must have seen Family Man season, है ना. और छोड़ो Family Man, ताज अटैक देखा है 26/11, है ना. और ताज नहीं तो ये अपना जो आया था 9/11, है ना. Why did those attack take place? Because somewhere or other the fisherman took the bribe from a person. That bribe may not be very big bribe, but he would have taken 550 rupees, है ना. He allowed the entry of RDX into the Mumbai city, and that RDX led to the destruction of that terrorist attack, and then the destruction of life and property. So you can evaluate the impact, how high the cost was of that small unethical behavior. Now you will give this example when the case study person was saying na कि how does it matter, we are a small minority, अगर हम छोटा सा काम करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है. तुम बोलो ये फर्क पड़ेगा. करप्शन कहीं पे हो रहा है तो ऐसा आर्गुमेंट दो. बोलो बहुत हाई कॉस्ट. कई बार इवन द स्मॉल एक्ट्स कैन हैव अ वेरी हाई consequences. अब एग्जांपल तुम अपने आप जोड़ लेना. आई हैव गिवन यू द लाइन ऑफ थिंकिंग, है ना. आई एम नॉट हेयर टू टीच, है ना. एज ऑलवेज से एसआईपी और इसमें तो चलो मैं फिर भी कुछ पढ़ा रहा हूँ. हम तो एसआईपी और फॉरलॉज में वी डू नॉट टीच एट ऑल, वी जस्ट गाइड. आई एम गिविंग यू द जनरल फ्रेमवर्क. यू विल हैव टू डेवलप द एग्जांपल्स ऑन योर ओन. आई विल नॉट गिव यू द एग्जांपल्स डिस्कशन में. आई विल गिव यू द एग्जांपल्स, बट यू विल हैव टू थिंक एग्जांपल्स ऑन योर ओन. You can discuss with me, and if you and believe me, why I'll not be giving the examples is I've told this earlier also, because ready-made examples you will be getting now, you will not be able to use this. I have a practical experience in 2023. The examples which I thought on my own, I was able to use only that in the crisis situation. I could not write the examples which I learned from the standard material, है ना. So you will have to think on your own. I'll give you the guidelines to prepare in the Pareto optimized manner, in a short manner, in a very concise manner. ठीक है. अब आते हैं कि चलो हमें तो पता चल गया. अच्छा चलो पहले तुम बताओ. ये बताओ कि अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि एथिक्स की इंपॉर्टेंट क्यों है. एथिक्स की इंपॉर्टेंस सबको समझ आ गई कि भैया सोशल वेलबींग होता है, ह्यूमन वेलबींग होता है, कॉस्ट भी है इसकी अगर नहीं करेंगे तो. ठीक है. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है. तो अब ये बताओ, जो हमें तो हम सबको, तुमको, मेरे को सबको पता है, तो हम क्यों नहीं एथिकल एक्ट करते. क्या दिक्कत है. Why don't we act ethical? ये वाला जो मैं अभी करा रहा हूँ ना, ये इसकी इंपॉर्टेंस तुमको तब समझ आएगी जब जिस दिन तुम केस स्टडीज वगैरह अटेम्प्ट करोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि इसके यही चीजें लिखनी होती है वहां पे. यही चीजें एग्जैक्टली यही चीजें लिखनी होती हैं. जब तुमसे वो पूछेगा कि भैया छोटा सा एक्ट है तुम्हारे के पॉल्यूशन इंडस्ट्री में, तुम्हारा बॉस तुम्हारी सुन नहीं रहा, छोटा सा पॉल्यूशन एक्ट है, कि क्या करोगे उस टाइम पे. फिर तुम मुझे बताओगे बेटा ये चीजें है, ये नहीं करोगे तो सोशल वेलबींग खराब हो जाएगा, ह्यूमन वेलबींग खराब हो जाएगा, कॉस्ट होगी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन खराब हो जाएगा. फिर ये आर्गुमेंट, तुम ये सब आर्गुमेंट दोगे उस टाइम पे. और जब कोई फॉलो नहीं कर रहा होगा, फिर तुम बोलोगे कि इस कारण से फॉलो नहीं कर रहा, इस कारण से फॉलो नहीं कर रहा. और बहुत ही बहुत अच्छे आर्गुमेंट देने वाला हूं मैं तुमको. व्हाई डोंट वी एक्ट एथिकल. बहुत अच्छे. एक बार तुम लोग बताओ. लेट्स पार्टिसिपेट. बताओ अगर तुम्हें पता है कि ये सब सही क्या है गलत क्या है, देन व्हाई डोंट वी एक्ट एथिकल. बताओ जल्दी से. भाटिया, विराज, आर्यन, नितिन, बताओ भाई कोई. अगर सर जैसे सब्जेक्टिव, नाइस, वैलिड. ये मेरे पास भी एक आर्गुमेंट. ठीक है. सेल्फिश इंटरेस्ट, स्लिपरी स्लोप, रिग्ड, डिफिकल्ट टू एक्ट ऑनेस्टली. डिफिकल्ट मतलब हार्डशिप्स हो गई. ठीक है चलो. हार्डशिप्स एंड सब्जेक्टिव ये दोनों मेरे पास भी हैं. आगे. अब देखो तुमने सोचा है तो तुम्हारे पास निकला. अब जब आएगा ना मौका, अभी तुम्हें बताऊंगा, क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगा ये कहाँ यूज होंगी चीजें. हवा में बात नहीं कर रहा हूँ मैं. स्टैंडर्ड मटेरियल भी बता सकता था जैसे सब पढ़ाते हैं. Why am I telling you all this? Because based on my experience, this is the crux of entire 20 sessions I'll be taking. These first 3 lectures are the crux of entire 20 sessions I'll be taking in the ethics. पहले 3 सेशंस तो बहुत ही ज्यादा सबसे एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट है. फाउंडेशन है पूरे एथिक्स का वो. क्योंकि एवरी टाइम वी आर डूइंग नथिंग बट जस्टिफिकेशन ऑफ आवर डिसीजंस. और जस्टिफिकेशन तुम तब तक नहीं कर सकते जब तक तुम्हारे पास खुद क्लैरिटी ना हो. डिफिकल्ट टू एक्ट ऑनेस्टली, सही बात है. और सब्जेक्टिव है कि हमें खुद नहीं पता. कई बार भाई ओपननेस है, ओपननेस इज अ वैल्यू.
है ना। ओपननेस, अब मैं कितना ओपन हूँ मुझे यही नहीं पता। बताऊंगा ओपननेस के भी एग्जांपल बताऊंगा तुम्हें, बहुत अच्छे एग्जांपल है मेरे पास। और बताओ। सर scared because it might scared because police involvement. हार्डशिप्स है, वो हार्डशिप्स है कि तुम्हें हार्डशिप होंगी, दिक्कत होगी तुम्हें, तुम्हारा डाइवर्स पर्सनल लॉस होगा, प्रोफेशनल लॉस होगा, लॉस होगा तुम्हारा। ठीक है, और डाइवर्जेंस है, मतलब रिलीजन कुछ कह रहा है, लॉ कुछ कह रहा है, पर्सनल सब्जेक्टिविटी हो गई, कह रहा सब्जेक्टिविटी हो है। गई, अच्छा, सब्जेक्टिविटी में आ गया वो। और बताओ कि क्लैरिटी नहीं है तुमको, हो गया। और बताओ। सर जैसे मतलब ये पॉलिटिकल पार्टीज का वो होता है, मैनिफेस्टो होता है, हम्म ठीक है, वो फुलफिल नहीं करती हैं। हम्म सो इफ somebody owes me nothing, then I owe nothing to anyone. ठीक है, ठीक है, तुम मतलब यू आर डिसएंगेजमेंट, मैं समझ गया, ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है आगे। अनअवेयर ऑफ राइट टू डू, वो ठीक है, वो क्लैरिटी नहीं है तुमको। और डिफरेंट डिफरेंट चीजें लाओ ना थोड़ा सा। यार ये पूरा सिलेबस रिकॉल करो, मतलब एथिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है पीवाईक्यू रिकॉल करो, एस सिलेबस रिकॉल करो। कुछ समझ नहीं आ रहा तो रिकॉल करो सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। साइकोलॉजी के टॉपिक्स ही नहीं लाए तुम अभी तक। साइकोलॉजी के कितने सारे टॉपिक्स हैं, फिलोसफी के कितने टॉपिक्स हैं, इंक्लूड करो उसको। ये निचोड़ दे रहा हूँ, मतलब जो होता है ना कि पूरा निचोड़ के दे देना, पूरा एथिक्स का पूरा निचोड़, वो पूरा निचोड़ बता रहा हूँ मैं अपना सोच समझ, बहुत सोचा हुआ है मैंने, तब मैंने निकाले थे आर्गुमेंट से। क्राउड इफेक्ट, if the other person is not acting ethical then there is no boundary for me to act ethical as well। चलो ये भी अच्छा अच्छा वैलिड है, चलो अच्छी बात है ये वाली बात। Sir, nobody is ready to take the first step. nobody is ready to take the first step, ठीक है चलो। मतलब जैसे अगर lack of enlightened conscience, poor socialization, ठीक है, वो वही है enlightened conscience, अविराज वही हो गया जो तुमने वो बोला ना, unaware about right to do thing, पता ही नहीं। और इनिशिएटिव लेना चाह रहे तुम, ठीक है, क्राउड इफेक्ट हो गया, एक तो तुम खुद नहीं इनिशिएटिव इनिशिएटिव लेना चाहते, और दूसरे तुम्हें खुद भी बाहर के लोग भी प्रेशराइज कर रहे हैं कि मत करो मत करो मत करो। और और सर बिलीफ सिस्टम अलग होता है, मीन्स कॉन्टेक्स्ट के, सपोज किसी के प्रोफेशन में वो बिलीफ सिस्टम अलग होगा, किसी के रिलीजन में अलग होगा। ठीक है, वो सब्जेक्टिविटी हो गई, ठीक है। हार्डशिप, मतलब हार्डशिप दैट विल फॉलो अगर मगर व्यक्ति जो है माइनॉरिटी में है और बाकी सब जो है ऑल अब बताओ, अब आ गए ना तुम, अब यही तो चीज बच्चा बोल रहा है, आओ देखो पेपर के अंदर, बताओ उसको क्या आर्गुमेंट दोगे। अब अगर तुम्हें समझ नहीं आएगी ना व्हाई मोरालिटी मैटर्स, जब बच्चा ये बात बोलेगा ना तुमको, तुम्हारा दोस्त आके केस स्टडी में ही बोलेगा, ये देखो तुम्हारे कैसे तोते उड़ते हैं, कि वो यही तो बोल रहा है तुमको कि भैया ऐसा ऐसा हो गया, मैं क्या करूं। जो तुम बोल रहे हो ना कि वो हार्डशिप होगी, ये होगी वो होगी, ये देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यही तो बोल रहा था कि मैं अकेला रह जाऊंगा भाई, मैं क्या करूं, आई एम ए स्मॉल माइनॉरिटी, मैं क्या करूं। अब बोलो क्या करोगे, वो तो यही इसी का आर्गुमेंट मांग रहे हैं तुमसे। देख लो पूरा केस स्टडी यही है, 20 नंबर का केस स्टडी है, क्या लिखोगे इसके अंदर। अगर तुम्हें ये क्लैरिटी नहीं होगी ना क्यों कर रहे हैं, तो नहीं लिख पाओगे। और बताओ, अब समझ आया मैं क्यों करा रहा हूँ एक्सरसाइज, इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन इसी चीज के आए हुए हैं और ये कोई नहीं बताता। तुम देख लेना, मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, किसी ने भी पूरे मार्केट में किसी ने भी अच्छे से कोर्स में कराया हो ये, क्योंकि वो उनका काम है पढ़ाना, पढ़ाने के बाद उसको एब्जॉर्ब करके नंबर कैसे लाना है वो कोई नहीं बताता। और ये मेरा वाला पर्टिकुलरली कोर्स उसी चीज का है। और बताओ। और सोचो, और सोचो थोड़ा, और मतलब अपने चक्षु को खोलो। क्यों नहीं करते हम भाई। एक तो ये है कि जैसे मैं बताता हूँ, मान लो व्हेन इट विल कम टू ए मोरल फैमिलिज्म बोलता हूँ मैं इसको, कि व्हेन इट विल कम टू माय फैमिलीज मोरल्स डोंट अप्लाई। कि अब तो मेरी माँ पे बात आ गई, अब नहीं मैं किसी की सुनूंगा, अब तो भैया माँ इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, समझ रहे हो। अब नाउ मोरालिटी डज नॉट अप्लाई टू मी, दिस इज व्हाट आई कॉल मॉरल डिसएंगेजमेंट, बाउंडेड एथिकलिटी। कि भैया एक लिमिट के अंदर ही बाउंडेड एथिक्स मेरे एक लिमिट में ही काम करेंगे, बियॉन्ड दैट व्हेन इट कम्स टू माय फैमिली एथिक्स डू नॉट अप्लाई। दूसरा है कि मेरे को खुद को हार्डशिप होगी, मेरी पर्सनल लाइफ, मेरा करियर खराब हो जाएगा। सैंड माफिया के अगेंस्ट क्यों खड़ा होना है मुझे, बताओ क्यों खड़ा होता हूँ समय सैंड माफिया के अगेंस्ट। बेनिफिट तो तुम बता दोगे, सोशल वेलबींग है, ह्यूमन वेलबींग है, सब है, नुकसान कौन बताएगा, नुकसान भी बताओ ना। समझ रहे हो ना। और थोड़ा और 2 मिनट और करते हैं फिर बताता हूँ अपने पॉइंट्स, सोचो। सर रेड टेपिज्म।
रेड टेपिज्म ठीक है, तुम्हें सोसाइटी फोर्स कर रही है, ठीक है, चलो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं वो वही बात होगी। एक्सटर्नल फोर्सेज मतलब इसको एक ही पॉइंट बना सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेज आर नॉट अलाउइंग यू, कि तुम तो चाहते हो लेकिन एक्सटर्नल फोर्सेज आर नॉट अलाउइंग यू, ठीक है। और नो इंसेंटिव, ठीक है, सही बात है, इंसेंटिव वाली बात भी सही है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि अगर तुम्हें एथिक्स का मतलब पता है ना, तो इंसेंटिव डिसइंसेंटिव की बात नहीं होती। सर एवरी रिलेशनशिप इज अ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन ठीक है, ट्रांजैक्शन की तरह देखते हैं हम नैरोनेस ऑफ वो वैल्यूज जो एथिक्स में क्वेश्चन आया था कि क्राइसिस ऑफ मॉरल वैल्यूज आर कैन बी ट्रेस्ड टू नैरो लाइफ ऑफ पब्लिक, नैरो लाइफ ऑफ सोशल वैल्यूज। और बताओ, चलो अब अपन करते हैं। देखो पहले तो कि हमारी डिजायर जितनी ज्यादा है कि हमारी कॉन्शियस को ओवर पावर कर लेती हैं। मेरी कॉन्शियस क्या है कि भैया ऐसा काम करना है, झूठ नहीं बोलना किसी से, पंक्चुअल रहना है। लेकिन मेरी पर्सनल डिजायर ही ऐसी है कि यार कौन लेक्चर बनाए, कौन छोड़ना, ठीक है। मेरी पर्सनल डिजायर ऐसी हैं, पर्सनल कंफर्ट मेरा इतना ज्यादा है कि दैट हैज ओवर पावर माय कॉन्शियंस। मेरे को क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस होगा, मुझे पता है अगर मैं टाइम पे नहीं आया तो, बट माय डिजायर्स आर ओवर पावरिंग देम, है ना, दे आर आउट कॉम्पिटिंग देम। ये जेएस मिल का कॉन्सेप्ट है, इसका एक बहुत अच्छा कोट है, यू कैन सर्च इट आउट इन इंटरनेट। उसका क्रक्स यही है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आवर डिजायर्स आर स्ट्रॉन्गर देन आवर कॉन्शियंस। एंड व्हाई डज इट हैपन, है ना, व्हाई डज इट हैपन, वो फिर आप साइकोलॉजिकल टॉपिक है कि जो हाउ एटीट्यूड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड हाउ टू रिफॉर्म दैट एटीट्यूड। बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए इसके, दिखाऊंगा अभी पीवाईक्यू में मैं, समझ लो। सेकंड है हार्डशिप, तुमने बोल ही दिया, पर्सनल एंड प्रोफेशनल, कि कई हार्डशिप्स क्या है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। भाई मुझे पता ही नहीं कि मैं एनवायरमेंट फॉलो करूं, डेवलपमेंट फॉलो करूं, मुझे पता ही नहीं मैं अपनी फैमिली को फॉलो करूं, सैंड माफिया आ गए मेरे पास, फैमिली को मानूं या उसको मानूं, नेशन को मानूं, कॉन्फ्लिक्ट है। मैं क्या नाम है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बहुत सारे एग्जांपल है। डॉक्टर आ गया, लॉयर आ गया, अब मान लो निर्भया का लॉयर होगा, सोचो वो लॉयर निर्भया की बात, निर्भया का केस लड़े या फिर उसका उनका केस लड़े। डॉक्टर ले लो, वो स्टैंडर्ड होते हैं। ये अर्जुन का ले लो, अर्जुन का डिलेमा है, उसको खुद नहीं पता क्या करूं, कॉन्फ्लिक्ट्स है, ड्यूटीज के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इंटरेस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, समझ रहे हो। ही इज हैविंग हार्डशिप्स, या तो पर्सनल लाइफ में होंगे, प्रोफेशनल लाइफ में होंगे। प्रोफेशनल के तुम यू कैन डिग आउट द एग्जांपल्स। कहां से एग्जांपल डिग आउट करोगे, पीवाईक्यू से डिग आउट करो ना, क्यों सोच रहे हैं तुम्हें फालतू का। पहले पीवाईक्यू जो चीजें पीवाईक्यू ने दे दी उसको यूज करो, यूज दोस, उसके बाद नया सोचना अपना। पीवाईक्यू से उठाओ एग्जांपल सारे के सारे। पर्सनल हार्डशिप्स हैं, पर्सनल हार्डशिप में अपनी खुद की लाइफ की हो सकती है, और जो हमारे इमीडिएट है फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, और नेबर्स हो सकते हैं, कुछ भी रिलेटिव्स हो सकते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली हो सकती है, ठीक है। सब्जेक्टिविटी तुमने बोल ही दिया, सब्जेक्टिविटी क्या मैं बताता हूँ एग्जांपल इसका। ओपननेस और करेज, दो एग्जांपल लेंगे हम। करेज मतलब दो तरह के करेज होता है। एक है कि तुम्हें पता ही नहीं कब करेज दिखाना है, कब नहीं दिखाना, ठीक है। एक तो होता है फिजिकल करेज, एक होता है मोरल करेज। मैं अभी यहाँ पे करता हूँ फिजिकल करेज की बात, ठीक है। देयर इज अ पर्सन, जब आईपीएस ऑफिसर है या फिर आर्मी का बंदा है, ठीक है, जब मौका आया ही इज नॉट एक्टिंग विद द करेज, है ना। अब जब टेररिस्ट आ गया तो ही इज नॉट एक्टिंग ऑन द विद करेज, एंड जब नॉर्मल सा डकैती हो रही है तो वो एक्ट कर रहा है, या नॉर्मल सा काम हो रहा है, तो उसे पता ही नहीं कितना करेज दिखाना है कितना नहीं दिखाना। या मॉरल करेज का ले लो कि जब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो हिल सकम, ही डज नॉट नो करेज किस लेवल पे दिखाना है, कितने लेवल पे दिखाना है, कितनी डेप्थ तक दिखाना है, ही इज नॉट हैविंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट। फिर सुपरफ्लूअस वो करेज आ गया। सुपरफ्लुअस करेज। ओपननेस का एग्जांपल लो, ओपननेस में क्या है, महात्मा गांधी जी का वो किया, ठीक है, असैसिनेशन किया। महात्मा गांधी वाज असैसिनेटेड बाय वो, ठीक है, नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे। अब उस टाइम पे इट वाज नॉट, ओपननेस हमारी वैल्यू थी शुरू से ही, तो इट वाज नॉट डिजायरेबल टू बी ओपन अबाउट दिस कि उसको किसने मारा है, या नहीं उस टाइम पे डिजायरेबल था ये, उस टाइम पे ये डिजायरेबल था कि उसको हिंदू नहीं मारा है। अगर उस टाइम पे लोगों ये, इफ पीपल वुड हैव कंसीडर्ड दिस कि मुस्लिम ने उसको मारा है, तो सोचो कितने राइट्स होते, राइट्स की संख्या सोचो कितनी होती। तो एट दैट टाइम वी हैव टू बी ओपन। इफ वी आर नॉट ओपन देन द कॉस्ट ऑफ आवर एक्ट इज लॉट मोर। सेकेंडली, आप इंदिरा गांधी की असैसिनेशन के टाइम पे सोचो कि was it, do you think was it necessary to be open about that Sikh person was from Sikh community who assassinated her? इसी चीज के कारण इसी चीज के कारण कॉन्फ्लिक्ट हुए, राइट्स हुए। अगर हम उस टाइम पे बचा लेते, ना रखते ओपननेस,
क्योंकि हमारे लिए तो पब्लिक इंटरेस्ट मैटर करता है. What matters to us is the public interest. Falsehood takes place of जो क्वेश्चन दिखाया था ना अभी तुम लोगों को मैंने, falsehood takes place of वो place of unblemished common good when the case is of unblemished common good, है ना, समझ गए ना. तो ओपननेस कब दिखानी है कब नहीं दिखानी, दैट इज वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर. हमें खुद नहीं पता कब दिखानी कब नहीं दिखानी, क्लैरिटी नहीं है किसी को. falsehood takes place of truth when it results in unblemished common good. At that time it was prudent to be not open about this. Who killed her. अगर हम ये बचा लेते इंफॉर्मेशन तो नहीं होते राइट्स. ठीक है. तो सब्जेक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यूज, कोई भी वैल्यू उठा लो, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, कुछ भी जो मर्जी उठाओ. अब तो एग्जांपल्स आपको समझ आ गए. सब्जेक्टिविटी है. दिस इज अ वेरी गुड आर्गुमेंट. उसके बाद आइकमैन फैलेसी. व्हाट इज आइकमैन फैलेसी? आइकमैन फैलेसी इज दैट कि आई वाज ऑर्डर्ड टू डू दिस, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्ट्स. मैंने तो किया ही नहीं, मुझे तो बोला गया ऐसा करो. आई वॉज ऑर्डर्ड बाय माई बॉस टू डू दिस एक्ट, दैट्स वाई आई एम एक्टिंग अनएथिकल. दिस Eichmann fallacy was found out during the Nuremberg trials. Nuremberg trials was when the people were tried, the soldiers were tried for that Jews Holocaust. At that time they were questioned ki you knew this, ki you are putting them in the gas chambers and so many people are dying, why did you do this? They said that we are not doing this, we are not responsible for these things, our boss ordered us. So this is Eichmann fallacy, ki we are under the fallacy that we are not responsible for our acts, someone is ordering us and hence we are doing this. Now these things you will बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं केस स्टडी में ऐसे कि यू आर नॉट, योर पॉलिटिशियन इज आस्किंग यू टू डू दिस, योर बॉस इज आस्किंग यू टू डू दिस, योर चीफ इंजीनियर, योर इंजीनियर, योर मतलब यू आर मान लो वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंड चीफ इंजीनियर इज आस्किंग यू टू ओवरलुक द डिजाइंस, द फॉल्टी डिजाइंस इन द ब्रिज, है ना. बहुत सारे केस हैं, तुम्हें पता ही है, बहुत सारे केस आ रखे केस स्टडीज ऐसे कि व्हाट विल यू डू. दिस इज एन Eichmann fallacy. At that time I will say that Nuremberg principle tells us that we are morally responsible for our acts. It doesn't matter who orders us or who doesn't order us. We are morally responsible for our acts. We cannot transfer the responsibility to our boss for unethical acts. For each and every act we are responsible ourselves only. ठीक है. Fifth argument is bounded ethicality and moral disengagement. वो तुम्हें मैंने बता दिया कि when it comes to my family, morals do not apply. When it comes to my personal interest, morals do not apply. ठीक है. For example, कुछ भी ले लो. When it comes to particularly my social circle, my small social circle, my particular interest, morals will not apply. ठीक है. मैं अपना पर्सनल भाई when it will come to my mother, morals will not apply. Otherwise, I am very more person of morals. समझ रहे हो. What will you do when अब लोग people will question us कि तू तो बड़ा 30 मार खा बनता है, प्रिंसिपल का बंदा बनता है कि then I will what we will do, we will try to modify our justifications, we will try to modify our principles कि नहीं यार वो मैंने clearly नहीं बोला था, I'll try to be subjective कि यार वो मैंने ऐसा थोड़ी बोला था, वो ऐसे केस में ऐसा होगा. I'll try to modify, I'll try to justify कि यार ये स्पेशल केस है, this is a special case, this is a special situation, this is a special times, dire measures. I will deny, अरे मैंने नहीं किया. I will deny कि नहीं मैंने नहीं किया. ठीक है. I'll lie कि नहीं हुआ ही नहीं ऐसा. तो this is a technical word, bounded ethicality. मतलब my ethics is bounded by my personal interest. Moral disengagement, I will engage with morals only when it comes to public, and when it will be my personal life, morals do not apply. समझ गए भाई. अब डाउरी का केस है, डाउरी जब अपने घर में हो रही होगी तो तुम बोलोगे ना होने दो, अब क्या फर्क पड़ता है, हमारी फैमिली है, पापा को थोड़ी नाराज करेंगे. बट when it will come to the being an administrator, तो you will not allow dowry, so you will not allow child marriage also. लेकिन अपने घर में जब हो रही होगी, you will allow it. Why? Because your ethicality is bounded by your personal interest. ये अपने मर्जी से वर्ड नहीं बनाए मैंने, सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं ये, और सब सोच समझ के न्यूज़पेपर वगैरह से इधर से उठाए हुए वर्ड्स हैं ये. एवरीबॉडी इज गेटिंग ना. फिर उसके बाद है थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर. अब ये हम उसमें पढ़ते हैं साइकोलॉजी में, साइकोलॉजिकल टॉपिक्स में, एटीट्यूड वाले टॉपिक में पढ़ते हैं कि थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर क्या बोलती है. लेट्स से आई हैव डिसाइडेड आई विल नॉट स्मोक, है ना.
मोरालिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब लेट्स से टाइम वाले एलिमेंट भी डाल सकते हैं कि सब्जेक्टिविटी है वो वही है, मतलब ठीक है कि थिंग्स आर नॉट यूनिवर्सल इन नेचर। अब थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर क्या बोलती है कि आवर एक्शंस, फॉर एग्जांपल आई हैव डिसाइडेड आई विल नॉट स्मोक, नाउ माय दिस डिसीजन इज डिपेंडेंट ऑन थ्री थिंग्स है ना। फर्स्ट थिंग इज what consequences I consider about my actions. For example, I have decided I'll not smoke. Then, what bad consequences, what negative consequences will happen due to my decision on me? What perception I am having with respect to the bad consequences? कि withdrawal symptoms आएंगे, ठीक है, जो भी मतलब समझ रहे हो ना। Second factor is what society considers about my decision. What society is thinking about the consequences of my decision. ठीक है कि मैं अगर स्मोक करता हूं तो आसपास में आई कॉज डिस्कम्फर्ट, लोगों को डिस्कम्फर्ट होता है, पब्लिक प्लेस में नहीं करना चाहिए, ठीक है, मेरी फैमिली को खराब होगा, मेरी बीवी की लाइफ खराब होगी, बच्चों की लाइफ खराब होगी, ऑल दीज थिंग्स। सेकंड थिंग इज व्हाट सोसाइटी कंसीडर्स। फर्स्ट इज अबाउट माय ओन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द consequences. सेकंड थिंग इज सोसाइटीज consequences. थर्ड थिंग इज that this is where the everything comes in. सोसाइटी भी तुम्हें मना कर रही है, तुम खुद मना कर रहे हो कि यार गंदी चीज है, आई विल नॉट स्मोक। बट जब थर्ड पार्ट आता है ना, ये हमको सकम करवा देता है कि एम आई एबल टू कंट्रोल माई अर्ज, हाउ हाउ कंट्रोलिंग आई एम विद रिस्पेक्ट टू माई डिसीजन। एम आई अ पर्सन ऑफ कन्विक्शन कि आई कैन कंट्रोल इट मेंटली एंड फिजिकली बोथ। डू आई हैव कंट्रोल ओवर माई डिसीजन कि अगर विड्रॉल सिम्टम्स आए तो कैन आई कंट्रोल इट फिजिकली, मेंटली? नो। थोड़ा सा प्रेशर आएगा, I'll go and smoke. Are you understanding? These three factors affect us. So that's why we know कि society, we know that it is wrong. We know society is also telling us it is wrong, but we do not have control on our actions. This is related to the hardships. It will cause hardships to us. I do not have control over things. And some things are out of my control. ठीक है। Seventh argument is bypass trial. Bypass कि I'll bypass कि I'll not be accountable for my actions. I can easily bypass. Why corruption happens? This reason is this, because they think that मैंने corruption किया है तो लेने वाले ने भी तो corruption किया है, वो भी फंसेगा, और दोनों फंसेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता, तो I can bypass. Why do rapes happen in the familial structure? Why do rapists are from the known family members? Why? Because they know that they can escape. Because they know that it will come to the dignity of the family, and family will not reveal all these things to the state. That's why. अब समझे कि अब रेपिस्ट को भी पता है कि वो रेप कर रहा है, गलत है, but why is he doing this? Because he's not having control over his senses. Society, his own conception is that it is wrong. Society is also saying that it is wrong, but he's not able to control his senses. Secondly, he thinks that he can bypass the trial. समझ रहे हो? These are the 7 reasons as per me. You can add on if you think add on the other elements. बताओ। और कुछ है बचा है कि इसमें क्या ऐड कर सकते हो? एक डर्टी हैंड्स प्रॉब्लम होता है। डर्टी हैंड्स मतलब कि डर्टी हैंड्स प्रॉब्लम मतलब आई विल हैव टू गेट माय हैंड्स डर्टी टू डू द गुड थिंग। कि फॉर एग्जांपल डिमोनेटाइजेशन करना पड़ा, क्यों? क्योंकि हमें ब्लैक मनी हटाना है ना। तो आई विल हैव टू फॉर एग्जांपल कैन गिव द एनी कि टू हैव अ पॉजिटिव consequences, आई विल हैव टू डू दिस डर्टी थिंग्स। वो रॉबिन हुड मेंटालिटी कि आई विल हैव टू स्टील मनी टू हेल्प अदर पीपल टू एंश्योर सोशल जस्टिस। समझे? अब मेरे को ये बताओ कि पहले मतलब मैं अगर रिटर्न होता तो मैं रिकॉल करवाता। रिकॉल करो कि व्हाट आर द फैक्टर व्हाई मोरालिटी एक्चुअली मैटर्स। मतलब उसमें 15-16 पॉइंट थे। आर यू एबल टू रिकॉल ऑल ऑफ देम? सोचो एक बार। आई विल गिव यू 2-3 मिनट्स।
सोच लिया? ये एक्टिव रिकॉल प्रैक्टिस है, मतलब मैं जब पढ़ता था तो आई यूज्ड टू ऑलवेज रिकॉल, एक्टिव रिकॉल व्हाटएवर आई हैव स्टडीड इन पास्ट 10-15 मिनट्स. Now think about what are the factors for why don't we act ethical. देखो why morality matters. Morality में 4 हेडिंग्स थी: सोशल वेलबींग, ह्यूमन वेलबींग, और कॉस्ट ऑफ अनएथिकल बिहेवियर एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. कि एक तो मेरे लिए बेनिफिशियल है, सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बेनिफिशियल है, और अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो कॉस्ट भी है उसका. और सोशल के लिए, सोशल में क्या है, एक तो हार्मनी आएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ आएगी, और उसके बाद क्या आएगा सोशल के अंदर, मैं भूल गया. उसके बाद आएगा हॉब्स, ठीक है, हॉब्स का कोट. फिर उसके बाद ह्यूमन वेलबींग में क्या आएगा, ह्यूमन वेलबींग में आएगा कि एक तो मेरे को आइडेंटिटी देगा वो, ठीक है, आइडेंटिटी देगा, और क्या देगा मेरे को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, जजमेंट लेने में हेल्प करेगा, सेंसिटिव बनाएगा, और क्या करेगा, मेरे को एक कॉम्पिटेंट बनाएगा कि आई कैन थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माई एक्शन, है ना. अब देखो, अगर मैं कॉन्सिक्वेंसेज ही नहीं सोच सकता तो ये थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर काम ही नहीं करेगी. मेरे को कॉन्सिक्वेंसेज तो सोचने आने चाहिए ना. अब क्या है, व्हाई डोंट वी एक्ट एथिकल, इसके 7 पॉइंट्स है. कि एक तो सब्जेक्टिव है, ठीक है, एक तो सब्जेक्टिव वैल्यूज हैं कि मुझे खुद ही नहीं पता कि कितने डेप्थ में वो वैल्यू काम करेगी, कब काम करेगी, टाइम एंड सिचुएशन के हिसाब से चेंज होगी या नहीं होगी. फिर उसके बाद हार्डशिप्स है कि पर्सनल और प्रोफेशनल हार्डशिप. फिर उसके बाद है थ्योरी, डिसएंगेजमेंट, मॉरल डिसएंगेजमेंट, बाउंडेड एथिकलिटी थ्योरी क्राइसिस ऑफ कॉन्शियसनेस. ऑफ कॉन्शियंस, है ना. और पहला पॉइंट क्या लिखा था, पहला पॉइंट था, पहला पॉइंट भूल गया. डिजायर्स ओवर कॉन्शियंस, है ना. डिजायर्स ऑफ कॉन्शियंस, आवर डिजायर्स आर ओवर पावरिंग आवर कॉन्शियंस. और क्या था, देखो अब इससे देखो क्या है. अब मेरे को, अब आइकन फेलिसी मेरे को जिंदगी भर याद रहेगा, समझ रहे हो. ये 6 पॉइंट्स रिकॉल, ये बाईपास स्टाइल, आइकन फेलिसी तो अब नहीं भूल रहा मैं कभी भी. इसको बोलते हैं डिफरेंशियल लर्निंग, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल लर्निंग. क्या कर रहा हूं मैं कि आई एम, पहले पढ़ लिया मैंने, आई एम एक्टिव रिकॉलिंग. अब रिकॉल करते करते जितना याद आ गया वो तो मेरे को हमेशा याद आ जाएगा, उसकी दिक्कत है ही नहीं. सब्जेक्टिविटी हार्डशिप तो रट गए हैं मेरे को, मैं नहीं भूलूंगा. लेकिन आइकमैन फेलिसी में भूल गया था, है ना. तो माय ब्रेन विल सेंड द सिग्नल कि यार इसका कुछ स्पेशल है, ये भूल रहे हो बार बार. तो दिस इज व्हाट आई कॉल डिफरेंशियल लर्निंग. कि यू हैव द एग्जैक्ट नो हाउ व्हाट डिफरेंस इज इन योर लर्निंग, व्हाट थिंग्स यू फॉरगेट एंड व्हाट थिंग्स यू नीड टू रीलर्न. समझ रहे हो. अब आते हैं, चलो अब इसी की बात, अब आती है इंटीग्रिटी की बातें. भैया हमें पता चल गया एथिक्स इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों करना है हमें. अब उसके बाद फिर समझ आ गया कि भी इंपॉर्टेंट तो हम कर तो नहीं पाते, हिम्मत नहीं है हमारे में करने की. तो इंटीग्रिटी वाला बंदा वो होता है व्हेन ही इज एबल टू शोकेस मोरालिटी अक्रॉस टाइम एंड स्पेस. उसे फर्क नहीं पड़ता, वो कभी भी दिखाएगा. ही ऑलवेज शो द राइटियस कंडक्ट अक्रॉस ऑल द टाइम्स एंड अक्रॉस ऑल द स्पेस. घर की जगह हो, ऑफिस की जगह हो, पब्लिक प्लेस हो, कहीं पे भी हो, डजेंट मैटर. कॉर्पोरेट प्लेस हो, ऑफिस की जगह, कोई डजेंट मैटर एट ऑल. कोई भी जगह हो, आज का टाइम है, कल का टाइम है, सुबह है, रात है, 3 बजे है, रात के 5 बजे, डजेंट मैटर एट ऑल. आई विल ऑलवेज शो राइटियस कंडक्ट. अब इसमें अगर वो पूछते हैं कि, अब मान लो आपसे क्वेश्चन आया कि व्हाई पीपल आर नॉट, व्हाई इंटीग्रिटी इज अ टफ वैल्यू टू फॉलो, है ना. व्हाई पीपल आर नॉट ऑफ इंटीग्रिटी. कभी भी आ सकता है ऐसा कुछ कि हमें पता था, लेकिन बट व्हाई पीपल आर नॉट, व्हाई इंटीग्रिटी एज अ वैल्यू इज टफ टू फॉलो. Why people are why Indian value system, Indian administrative structure is not of integrity value, है ना. तो अब आपको समझ आ गया कि क्यों नहीं है. अब आप बताओगे, अब आपसे पूछूंगा मैं कि बताओ करप्शन क्यों होता है. समझ आ रहा है कि करप्शन क्यों होता है. अब तुम्हें समझ आ रहा होगा मैं क्यों पढ़ाया वो. अब तुम बताओगे करप्शन इसलिए होता है. तुम सोचोगे कि भैया पहले तो मैं अपने लूपहोल ढूंढ लेता हूँ, फिर मैं एडमिनिस्ट्रेशन के लूपहोल ढूंढूंगा. नहीं तो तुम क्या करोगे, खाली एडमिनिस्ट्रेशन के लूपहोल लिख के आ जाओगे. लीगल मैकेनिज्म में लूपहोल है, इंस्टीट्यूशन में लूपहोल है, ठीक है, ये सब लिख के आ जाओगे. जेन्युइन बातें तो तुम लिख ही नहीं रहे. समझ लो ना. अब तुम्हें समझ आएगा कि व्हाई आई टोल्ड दो 7 पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स. अगर कुछ और तुम्हारे पास आता है तो यू थिंक ऑन योर ओन, एट देम. इंटीग्रिटी के अब इसके ऊपर यू विल हैव टू लुक फॉर द पीवाईक्यूज. इसके ऊपर 2-3 कोटेशन है बहुत अच्छे अच्छे. एक तो यही वाला है कि एम्पावरमेंट, की इंटीग्रिटी एज अ वैल्यू एम्पावर्स इंडिविजुअल, है ना. एम्पावरमेंट देता है वो हमको. एम्पावरमेंट कैसे देता है, एम्पावरमेंट मतलब शक्ति देता है, शक्ति. भैया एक तो हम बोल रहे हैं कि इंटीग्रिटी प्रैक्टिस करना बहुत टफ है, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि इंटीग्रिटी हमें शक्ति देता है.
अब देखो, अब तुम्हें समझ आएगा व्हाई मोरालिटी मैटर्स, मैंने क्यों पढ़ाया ये। ठीक है, ये PYQ है, रुको दिखाता हूँ तुमको। यहाँ पे पब्लिक वैल्यूज में होगा क्वेश्चन, इंटीग्रिटी एज अ इज अ वैल्यू दैट एम्पावर्स ह्यूमन बीइंग। अब बताओ इसका आंसर कैसे लिखोगे अगर तुमने सोच ही नहीं रखा कि व्हाई मोरालिटी मैटर्स। अब तुरंत तुम्हारे दिमाग में आएगा कॉन्शियस, मॉरल आइडेंटिटी दे रहा है मेरे को, इसलिए मेरे को एम्पावर हो रहा हूँ मैं। भैया एटलीस्ट मैं, मेरे शरीर तो काम करेगा। अगर मेरा दिमाग ही मेरा टर्मोइल में है तो दिमाग ही मुझे पूरा कंट्रोल कर रहा है। अगर मेरा शरीर ही कंट्रोल में नहीं है तो मैं काम कैसे करूंगा? पहली शक्ति तो मेरे को वहीं से मिल जाती है कि एटलीस्ट आई हैव नॉट डन नथिंग रॉन्ग, आई एम एट पीस विद मी माई सेल्फ। ठीक है, अब सोचो इसका आर्ग्यूमेंट, अब तुम्हें समझ आएगा इसका आंसर लिखना क्या है इसके अंदर। अब अभी तक तो तुम्हें लग रहा होगा कि क्या पढ़ा रहा है, व्हाई मोरालिटी, क्यों हमें क्या पढ़ा रहा है। क्वेश्चंस आंसर करते हुए यही चीजें यूज होती हैं बार बार, और जो चीजें बार बार यूज हो रही थी वो मैंने कंडेंस पहले लेक्चर में डाल दिया। समझ रहे हो? सर इसमें पॉलिटी के केसेस भी लिख सकते हैं, जैसे केशवानंदा भारती केस? नहीं, इसमें मतलब लिखने को तो लिख दो कुछ भी, लेकिन मैं ये देखो क्या बोल रहे हैं, जस्टिफाई विद सूटेबल इलस्ट्रेशन। वो बोल रहे हैं एक इलस्ट्रेशन पकड़ो और उस इलस्ट्रेशन से मुझे बताओ कि एम्पावर कैसे हो रहा है। इलस्ट्रेशंस नहीं बोल रहा, वो इलस्ट्रेशन बोल रहा है। अब इसमें लोग क्या करेंगे, 10 एग्जांपल लिख के आएंगे। भाई 10 एग्जांपल मांग रहा है क्या? वो नहीं मांग रहा। ऊपर लिखा है देखो, एक्सप्लेन विद सूटेबल इलस्ट्रेशंस, यहाँ पे लिखो द एग्जांपल सुम। यहाँ पे तो एक ही मांग रहा है वो, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कोटेशन बेस्ड टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें यू विल हैव टू पिक अप वन एग्जांपल, और उस एग्जांपल से उसकी स्टोरी नरेट करते करते यू विल हैव टू एक्सप्लेन हाउ इट एम्पावर्ड हिम। अब एम्पावरमेंट वाली बात है, यू विल बी एबल टू ओनली राइट व्हेन यू हैव अ क्लैरिटी व्हाई, व्हाट इज द सेंस ऑफ एथिक्स एंड व्हाई मोरालिटी मैटर्स। तुम अब बोलोगे ह्यूमन बीइंग को बोल रहा है ना, तो तुम बोलो भाई मेरे को आइडेंटिटी दे रहा है, मेरे को सेंसिटिव बना रहा है, मेरे को कॉन्सिक्वेंसेस एड्रेस करने आ रहे हैं। समझ रहे हो ना? अगर वो नहीं होगा, ये पहले दो मतलब पहला लेक्चर क्लियर नहीं, तो फिर बहुत दिक्कत होगी। एथिक्स में कभी भी कन्विंसिंग आर्गुमेंट नहीं लिखोगे। और बिलीव मी, मेरे 90 से 100 मतलब 92 से 119 हुए थे, वो इसीलिए हुए थे बिकॉज आई स्टार्टेड राइटिंग विद अ कन्विक्शन। मैं तो सीधा मतलब दादागिरी से बातें करने लगता था, सीधा दादागिरी, कि भैया मेरे को रात को नींद नहीं आएगी, मैं करूं क्या? मेरी तो रात की नींद छीन ली तुमने। मैं अखबार में, अगर कल को मेरी बेटी ने अखबार में पढ़ लिया कि मेरा बाप ऐसा करता है, मैं कैसे शक्ल दिखाऊंगा उसको? अपनी बेटी को नहीं शक्ल दिखा पा रहा, मतलब पूरा दादागिरी से बातें शुरू कर दी थी। तो जब दादागिरी से लिखोगे ना, तब उनको एग्जामिनर को समझ आ जाएगा भैया ये कन्विक्शन से लिख रहा है। यही डिफरेंस है। तो इतनी दादागिरी से कोई नहीं लिख रहा होगा पेपर में, क्यों लिख? सर जैसे मतलब इसमें हम महाभारत वगैरह को तो कोट कर ही सकते हैं ना? हाँ, कर दो, कर दो। लेकिन उसमें सर, उसमें कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो जाएगा? जैसे मतलब समझ लो कि अर्जुन का एग्जांपल लें, तो अर्जुन ने वहां पे सभा में बैठ के द्रौपदी की मदद नहीं की थी, ठीक है? वहां पे उसकी मदद करने कृष्ण आए थे, ठीक है? तो अर्जुन के पास ना इंटीग्रिटी है ना मोरालिटी है, मतलब उसकी विद रिस्पेक्ट टू टाइम में इंटीग्रिटी भी चेंज हो रही है और मोरालिटी भी चेंज। अर्जुन इंटीग्रिटी का पर्सन है, हम तो युधिष्ठिर की इंटीग्रिटी पे उंगली उठा देते हैं। अर्जुन तो है ही नहीं इंटीग्रिटी का पर्सन। वो तो हजार इंसिडेंट्स है कि अर्जुन ने कभी इंटीग्रिटी नहीं दिखाई। अब देखो, अब तुमने बहुत अच्छा मेरे को फूड फॉर थॉट दे दिया कि भैया अर्जुन ही नहीं मोरालिटी के साथ काम कर रहा। हाँ। क्या मजबूरी हुई अर्जुन की? अब सोचो, मेरे साथ जो आर्गुमेंट, मैंने 7 आर्गुमेंट दिए, उसमें से कौन सा आर्गुमेंट फिट हो रहा है उसके अंदर? अगर नहीं हो रहा तो अर्जुन के केस में राइट डाउन द 8th आर्गुमेंट, अगर इफ देयर इज एनी डिफरेंट आर्गुमेंट। समझ रहे हो ना? उसका ऐसे था कि जैसे मतलब वो रूल्स को फॉलो कर रहा था, कि जैसे वो द्रौपदी को हार गया कि इसका फिर ये वो सब्जेक्टिविटी आ गई। एग्जैक्टली, ये सब्जेक्टिविटी के अंदर कवर हो गया। देखो अभी हम लोग जब आगे डिस्कस करेंगे ना, तो फिर हम अनजस्ट रूल्स और जस्ट रूल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। वो आएगा ना। देयर आर सर्टेन रूल्स, आई मीन इवन गांधी सेज इट्स अनजस्ट टू ये लिखा है मैंने, ये रहा सारा। ओबे अनजस्ट, एग्जैक्टली। ये रहा, बहुत सारे थिंकर्स है मेरे पास। इसका तो मैं बहुत अच्छा देता हूँ, इस पे लोगों लिख के भी आए थे, नंबर ही आए लोगों के बहुत अच्छे अच्छे। एग्जैक्टली। तो बात क्या है कि रूल्स लिखा है, न्यूरेमबर्ग ट्रायल से तो यही है। लाइक लेट मी गिव यू एन अनदर एग्जांपल। अब जैसे न्यूरेमबर्ग ट्रायल, अगर तुम लोगों ने वो प्रेमचंद का नमक का दरोगा पढ़ा होगा तो फिर वो पता होगा। देखो न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स में वो लोग क्या करते हैं, जो नाजी ऑफिसर्स, the command actually orders them to actually
bring in Holocaust and perpetrate violence, terror on the lives of Jew people. So what their defense was that they were following simply laws, they were following simple rules. However, at the same time, जब नमक का दरोगा में क्या होता है, नमक का दरोगा is like salt inspector. So what he does, British rule orders to levy unjustified tax on the salt and asks our protagonist to collect them. He resigns, he refuses to do it because he feels that the law itself is very unjust. I hope like you are getting the point कहाँ पे हम differentiate कर रहे हैं. यस सर। हाँ. अब उसमें वही भीष्म पितामह क्यों नहीं बोला? अब महाभारत में क्यों यूज करता था? महाभारत इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व ना, महाभारत में बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब धर्म समझ आएगा आपको कि एथिक क्या है, क्या व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग हमने बहुत इजीली बोल दिया कि सही क्या है गलत क्या है। अब अर्जुन को समझ ही नहीं आ रहा सही क्या है गलत क्या है, समझ रहे हो ना? अर्जुन को नहीं समझ आ रहा सही क्या है गलत क्या है। अब वहां पे फिर और क्लैरिटी आएगी, और क्लैरिटी चाहिए हमको, अनक्लैरिटी। इसमें 8वां रूल डाल सकते हो सब्जेक्टिविटी के साथ। सब्जेक्टिविटी इज अबाउट द डेप्थ ऑफ द वैल्यू, है ना? वो डिफरेंस है। एक और 8वां पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं कि व्हेन वी हैव अ डिलेमा, वी हैव अ सिचुएशन ऑफ डिलेमा, वी आर नॉट क्लियर कि व्हाट टू डू, है ना? मैंने हार्डशिप में इंक्लूड कर दिया था उसको, बट वी कैन मेक इट एज अ सेपरेट पॉइंट बिकॉज इट इज गिविंग अस डिफरेंट डायमेंशन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडेंटिटीज एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिलेमास। समझ रहे हो ना? मेन बात क्या है कि सिंस इफ यू हैव, अब देखो इस सब्जेक्ट का कोई स्टैंडर्ड लिटरेचर नहीं, कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट नहीं है, तो बात क्या है कि यू नीड टू डेवलप सम आर्ग्यूमेंट, सम फ्रेमवर्क्स कि जो यूपीएससी को भी पता है कि कन्विंसिंग है। उनको कैसे पता कि वो कन्विंसिंग है? दे हैव देमसेल्व्स आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम इट ना। एवरी आर्ग्यूमेंट, एवरी क्वेश्चन दैट Naman is trying to discuss actually comes from something directly from the like horse's mouth. ये अपने आप नहीं मैंने बनाए, मैंने पीवाईक्यू को सोच के आर्गुमेंट्स बनाए हैं सारे। Yes, exactly, and that's the beauty of, मतलब रैंडम लोगों के नंबर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि रैंडम आर्गुमेंट लिखोगे तो फिर रैंडम नंबर बनेंगे। बस फिर वही है, फिर 90 आएंगे, फिर 90 से लाओ और अपना मजे करो। 90 एथिक्स में 90 तो आने भी नहीं चाहिए। मतलब एथिक्स इज अ सब्जेक्ट की बहुत इजी स्कोरिंग पोटेंशियल है वहां पे। यस, बहुत इजी है। मतलब ये वो वाली बात है, जिसने मेंस दिया ना वो ये बात समझ सकता है मैं क्या बोल रहा हूँ। उसको समझ आएगा कि जब मार्कशीट सामने आती है ना, उसे लगता है कि यार इतनी मेहनत करी थी और 100 नंबर ही थमा दिए जीएस पेपर ऑप्शनल पेपर 1 में, तब उसे समझ आता है कि यार इससे आधी मेहनत करने पे एथिक्स में आ जाते 120। समझ रहे हो ना? अब इंटीग्रिटी, अब देखो 3 स्किल्स, एक तो एम्पावरमेंट वाला हो गया। अब क्या है, मैं पीवाईक्यूज ही यूज कर रहा हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग को करने के लिए। अब क्या है, मैंने अब बार-बार मैं पीवाईक्यू देखता रहूंगा। स्किल्स 3 स्किल्स वाला वो एक वॉरेन बुफे का कोट है कि इफ यू हायर अ पर्सन वी विल लुक फॉर 3 थिंग्स, एनर्जी, इंटीग्रिटी एंड एक और है स्किल्स, है ना? तो इफ यू वन और एक ये वाला है कॉम्प्रोमाइजेशन, ठीक है? कंप्लीट रिफ्यूजल टू कॉम्प्रोमाइज, ठीक है? और उसके बाद एक यहाँ पे भी आएगा, ये रहा एक, ये आ गया 4 कोट्स हैं इंटीग्रिटी के पीवाईक्यूज के अंदर। एक तो ये आ गया इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज, एक आ गया कंप्लीट रिफ्यूजल, एक आ गया एम्पावरमेंट, और एक आ गया ये इंटीग्रिटी, इंटेलिजेंस एंड एनर्जी। अब इंटीग्रिटी पे इफ यू आर मेकिंग द नोट्स ना, तो पहले इन 4 कोटेशन के नोट्स बनाओ, पहले इन 4 टॉपिक्स के नोट्स बनाओ। इसके बाद अगर टाइम बचे तो फालतू काम करना। मतलब मेरा तो मतलब एसआईबी में मैं बोलता हूँ कि पीवाईक्यूज के अलावा कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन एथिक्स में तो मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। एथिक्स में पीवाईक्यू के अलावा एक चीज भी नहीं करनी चाहिए, मतलब लिटरली हाथ भी नहीं लगाना चाहिए गलती से भी। मैं तो कह रहा हूँ मॉक टेस्ट भी मत दो, मॉक टेस्ट भी देना तो पीवाईक्यू बना के मॉक टेस्ट दो। मतलब एथिक्स में एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, इसमें कोई वैरायटी है ही नहीं। वही चीज को बात दे आर रिसाइकलिंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। पीवाईक्यू के आंसर बिल्कुल सॉलिड कर लो, 120 कहीं नहीं गए। और why I am not saying 140 because I believe 140 is मतलब थोड़ा सिचुएशनल कि किस्मत अच्छी है तो आ जाता है, लेकिन 120 is not situational, वो किस्मत पे नहीं है। 120 is pure skill, ठीक है? उसके बाद अब देखो, अब हम क्या करेंगे। हमने ये सीख लिया why ethics is important, हमने ये सीख लिया why don't we act ethical, ठीक है? अब हम सीखेंगे कि जब हमें पता है कि my organization, my staff will not act ethical despite my these ethical principles, है ना? तो अब मेरा काम है कि I'll build the ethical infrastructure। अब मेरा being a leader और being a father in my family, जो भी मतलब मेरी फैमिली में, नेशन में, सोसाइटी में, कहीं पे भी, ठीक है? इट इज माई जॉब टू बिल्ड द एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नाउ, बिकॉज आई नो
देयर आर लिमिटेशंस इन फॉलोइंग एथिक्स, देयर आर लिमिटेशंस, मुझे पता है। व्हाई डू आई नो दिस? बिकॉज आई हैव थॉट ओवर दीज थिंग्स। अगर मैं ये नहीं सोचूंगा तो आई विल थिंक, तो फिर तुम पता क्या होगा, व्हेन यू विल बी गिविंग द सॉल्यूशन फॉर बिल्डिंग एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ना, बिकॉज बहुत बार क्वेश्चन आता ही है, तुम्हें पता है पीवाईक्यू में, कि व्हाट विल यू डू, कि टू ऐसा ऐसा करें आपके सारे लोग, ठीक है, व्हाट विल यू डू, ऐसे ऐसे पूछते हैं कि व्हाट स्टेप्स विल यू टेक, तो उसमें यू विल गिव इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। अगर तुम्हें ये पता होंगे ना, इनहेरेंट लिमिटेशंस तुम्हें पता होंगी, तो तुम इनको इनकॉर्पोरेट करके यू विल राइट द सजेशंस। अगर इनको इनकॉर्पोरेट करे बिना यू विल राइट द सजेशंस, यू विल नॉट गेट मतलब वेरी गुड मार्क्स, नॉर्मल मार्क्स मिलेंगे, जो स्टैंडर्ड यू व्हाट यू विल डू, स्टैंडर्ड मटेरियल में पॉइंट्स लिखे होंगे, हाउ टू बिल्ड एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन, वही सारी बातें लिख दोगे, लॉज रूल्स रेगुलेशन बना दो, ठीक है, चेक्स एंड बैलेंसेस बिठा दो। अगर चेक्स एंड बैलेंसेस बिठा के सबके सब एथिकल काम कर लेते तो करप्शन क्यों नहीं खत्म हुआ अभी तक? ये लिखना है तुमको वहां पे, भैया इनहेरेंट लिमिटेशन है, तुम एग्जामिनर को बताना है कि मुझे पता है लिमिटेशन है करप्शन फॉलो करने, मतलब कि क्यों लोग करप्ट एक्टिविटीज करते हैं। जिस दिन तुमने उसको प्रैक्टिकल टिंज दे दिया ना, लाइफ का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दिखा दिए, थ्योरेटिकल मतलब मैं तो बोलता हूँ थ्योरेटिकल भूल जाओ सब कुछ, प्रैक्टिकल लिखो। प्रैक्टिकल जिस दिन तुमने दिखा दिया ना उसको, वो समझ जाएगा कि ये बंदा खुद सोच के आया है, ये रट्टू कुत्ता इंसान नहीं है, ही हैज नॉट लर्न मतलब एथिक्स फ्रॉम एनी कोचिंग, सोचा है इसने, सोचने वाला इंसान है ये। एंड बिलीव मी, बाय गिविंग 3 इंटरव्यूज आई कैन गिव दिस ऑन अ स्टैम्प पेपर कि यूपीएससी रिवॉर्ड्स द पीपल हु आर थिंकर्स ऑन देयर ओन, हु थिंक। तो सर कीवर्ड्स का क्या करना है फिर? कीवर्ड्स को अब मैं नहीं बोल सकता, इट इज ऑफिशियल, कीवर्ड को आग लगा दो। कीवर्ड्स भाई, कीवर्ड्स भाई, ये फॉर लॉज वाले निशांत समझेगा, निशांत विल गेट इट इन अ वेरी नाइस मैनर कि व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ फॉर लॉज, बिकॉज ही इज आवर स्टूडेंट ऑफ फॉर लॉज। कीवर्ड्स वो वाली बात है कि तुम केक खा रहे हो, है ना, केक का स्वाद टॉपिंग्स के ऊपर, जो तुम उसके ऊपर टॉपिंग्स डालोगे, काजू काजू प्याज जो भी तुम डालोगे, जैम्स वैम्स डालोगे, उसका उससे ज्यादा बढ़ेगा, या फिर फाउंडेशन जो तुम केक बना रहे हो, जो बेस है तुम्हारा, उससे केक ज्यादा स्वाद बनेगा? सर मेरे ख्याल से तो मतलब दोनों का ज्यादा टेस्ट आएगा खाने में साथ में। जब तक तुम्हारा बेस अच्छा नहीं है, तुम कितने भी क्योंकि 90% चीज तुम बेस खा रहे हो, 90% बेस है, 10% है ठीक है। टॉपिंग वाली। इफ यू आर नॉट हैविंग अ टेस्टी बेस ना, यू विल नॉट गेट अ टेस्ट इन द केक। मतलब ये वो वाली बात है कि तुम भाई दीवार में ये वो, जैसे तुम बना लो कि मैं तुम्हें मिट्टी से दीवार बनवा दूंगा, तुम्हारी घर बनवा दूंगा मिट्टी से, जैसे पुराने जमाने में बनता था, यू मेक द हाउस फ्रॉम सॉइल, है ना, एंड इट विल नॉट लास्ट। आई विल मेक इट वेरी एस्थेटिकली ब्यूटीफुल, बट इट विल नॉट लास्ट। थोड़ा सा अर्थक्वेक आएगा तो हिल जाएगा वो। हमें क्या करना है, फाउंडेशन, वी हैव टू फॉलो द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, जो डिमांड है, जो सब पार्ट्स हैं, जब आर्ग्यूमेंट्स हमारे कितने अच्छे हैं, व्हेन ऑल दीज 3 थिंग्स आर साउंड ना, जब ऑल दीज 3 थिंग्स आर गुड, देन दीज कीवर्ड्स, these ready-made examples, all these things work only then. For example, I gave you the example of integrity empowers human being, बताओ उसमें क्या कीवर्ड लिखोगे? वो तो पूछ रहा है जस्टिफाई विद सुटेबल इलस्ट्रेशन। अगर तुमने फ्लो के साथ, लिंकेजेस के साथ, इफ यू आर नॉट राइटिंग विद द फ्लो, योर पैराग्राफ्स आर नॉट हैविंग अ फ्लो, योर पैराग्राफ इज नॉट जस्टिफाइंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, है ना, कि तुम कितने भी कीवर्ड्स फेंक लो, कीवर्ड से थोड़ी जस्टिफाई हो जाएगा क्वेश्चन। वो तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा है, मुझे, मैं तुमसे सीधा ही सवाल पूछ रहा हूं, भाई मेरे को बताओ शक्ति कैसे मिलती है इंटीग्रिटी फॉलो करने से? तुम कीवर्ड फेंक के मेरे को शक्ति समझाओगे? ये वाली बात मतलब दिशांत विल अंडरस्टैंड कि फॉर लॉज में हम बोलते हैं कि फॉर लॉज में ऑल दोज थिंग्स आर सेकेंडरी। आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट दे आर सेकेंडरी। प्राइमरी थिंग इज फॉलोइंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। कीवर्ड्स रट लो, लेकिन फर्स्ट अंडरस्टैंड डिमांड। उस क्वेश्चन में क्या है, तुम्हें पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा, बिना पैराग्राफ के लिखोगे बहुत टफ है, तुम समझा दो उसको क्वेश्चन को, बिकॉज इफ यू स्टार्ट राइटिंग इन द पॉइंट्स ना, your all points will become discrete, they will be independent of each other, they will not have a connection between each other, but that question demands कि you narrate a single story। वो खुद ही बोल रहे justify with suitable illustration, you narrate a story with a single incident and tell us that कि अशोक खेमका, why अशोक खेमका is a man of integrity। नरेट अ स्टोरी कि कहां पे वो, जब उन्होंने मना किया जो भी गांधी फैमिली के उनको एक्ट को, तो कैसे एम्पावर, शक्ति कैसे मिली उनको? खाली बोलने, तुम्हारे बोलने से थोड़ी शक्ति मिल जाएगी, साबित करना पड़ेगा तुम्हें शक्ति कैसे मिली। समझ गए ना? आई होप आई वाज नॉट रूड, बट दैट इज द रियलिटी।
है ना। ओके ओके सर। अब देखो और क्या है इसमें, हम कहाँ थे? तो ये हुआ जैसे हाउ डू, देखो आप क्या पूछ रहे हैं, हाउ डू वर्च्यूज ऑफ ट्रस्टवर्दीनेस एंड फॉर्टिट्यूड गेट मैनिफेस्टेड। अब इसमें कीवर्ड्स, ठीक है, कीवर्ड्स विल हेल्प, बट वो पूछ रहा है हाउ। अगर तुम स्टोरी नरेट ही नहीं करोगे मेरे को, जब तक मेरे को यू विल नॉट एक्सप्लेन मी, है ना, हाउ विल आई अंडरस्टैंड कि हाउ दे आर, मतलब दे आर आस्किंग हाउ यार, दे आर नॉट आस्किंग व्हाट व्हाई, दे आर आस्किंग यू द एक्सप्लेनेशन, एंड एक्सप्लेनेशन नीड्स टू बी गिवन इन 3-4 लाइंस एटलीस्ट। अब जैसे देखो ये पूछ रहा है कि, अब इसमें पूछता है कि व्हाट डू दीस 4 वर्ड्स मीन टू यू। अब इसमें क्या कीवर्ड्स फेंकोगे? कीवर्ड्स नहीं फेंकने, इसमें समझाना है, चुपचाप समझा दो 3-4 वर्ड में, 3-4 लाइन में, खत्म। इसमें कीवर्ड वीवर्ड फेंकने जाओगे, एक तो इस 10 नंबर का क्वेश्चन है, इक्वल नंबर है, इसमें लिखोगे तुम 7 मिनट 6 मिनट मिलते हैं तीसरे क्वेश्चन में, सेक्शन ए के अंदर, तुम 15 मिनट 12 मिनट लिखोगे इफेक्टिवली क्वेश्चन, तो ये भी 10 नंबर का ही है ना। चलो बाकी काम फिर बाद में करते हैं, अगर इफ एनीबॉडी इज हैविंग द क्वेश्चंस। सर मतलब वो ज्यादा कीवर्ड कूवर्ड नहीं इकट्ठे करने, अपना जो अपना स्टैटिक है हाँ, वो उसी पे ज्यादा। कीवर्ड इकट्ठे कर सकते हो, कर लो, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ बेस ऑफ द केक। टॉपिंग्स करो, टॉपिंग से अलग होता है, एस्थेटिक अपील देता है वो, दैट इज इंपॉर्टेंट। ड्राइंग डायग्राम्स, गिविंग एग्जांपल्स, ऑल दोस। अब मैं जैसे, लेट मी गिव यू एग्जांपल, आई आस्क यू कि कंपैशन के ऊपर मैंने, आई आस्क यू अ क्वेश्चन एंड यू आर राइटिंग मी पैडमैन अ कंपैशनेट इनोवेटर। क्या समझ आया मुझे उससे? आई वोंट टेक द नेम, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पैडमैन कंपैशनेट इनोवेटर, ये 3 वर्ड से मुझे क्या समझ आया बताओ? That's why in the introduction itself I told you कि GS paper 4 is different from GS paper 1, 2 and 3. 1, 2, 3 में if you give a passing reference, we will understand what do you want to say. But in GS paper 4, they are asking us the explanation. They are asking us the मतलब more explanation. We have to explain here. We cannot just give the passing reference. मतलब तुम किसी, मैं दावा मारता हूँ, चलो ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, तुम किसी के भी मार्कशीट उठा कर देख लेना, जो खाली ऐसे काम करता है उसके मार्क्स मुझे नहीं लगता 100 पर कभी भी आए होंगे। आई एम डैम श्योर, मतलब एब्सोल्युटली डैम श्योर। दिख जाता है कि वो क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल कर रहा है या सुपरफिशियली ही इज राइटिंग द कीवर्ड्स एंड ही इज राइटिंग द एग्जांपल्स। अशोक खेमका, मैन ऑफ इंटीग्रिटी, बताओ इस क्वेश्चन में लिख के क्या करोगे तुम? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे मैन ऑफ इंटीग्रिटी, वो कैसे समझाओगे? स्टोरी से समझाओगे, एक ही तरीका है, और दूसरा तरीका है तो यू कैन इनोवेट। समझ रहे हो ना? यस सर। ठीक है, तो अब जैसे ये और भी हैं, बाकी चलो ये बाकी वाले पोर्शन पे बाद में करते हैं कि हाउ टू बिल्ड इट, ठीक है, व्हाट आर द टूल्स टू बिल्ड इट, ठीक है। अब ये एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला ना, मैंने 4 पॉइंट्स यहाँ दिए हैं। व्हेन द कोर्स विल प्रोसीड ना, मैं इसके टोटल 15-20 पॉइंट बना दूंगा तुम्हारे। व्हेन आई विल डू द एथिकल प्रॉबिट इन गवर्नेंस वाले टॉपिक्स, एंड आई विल डू द वैल्यूज वाले टॉपिक, टोटल पूरे सारे लेक्चर्स को मिला के 15-20 पॉइंट हो जाते हैं इसके, कि हाउ डू वी एक्चुअली बिल्ड द एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हेन आई विल टीच यू करप्शन ऑल एंड ऑल। तो बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, फिर उन सबको यू विल हैव टू कोलेट, बट दिस इज अ समरी कि हाउ टू बिल्ड एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। But as I always said, we have to give the practical solutions. If we do not give the practical solutions of building, मान लो मैंने तुमसे बोला कि भाई तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी वो चल रही है, यू आर एसपी, यू आर रिसेंटली पोस्टेड इन एसपी, केसडी आती है ऐसी कि ठीक है कि यू हैव रिसेंटली पोस्टेड एज एसपी एंड यू सी दैट योर ऑर्गेनाइजेशन, योर स्टाफ इज नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड दे आर वायलेटिंग द रूल्स एंड the recruitment was to be done and your boss was helping in the unfair means for the recruitment. What will you do? एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का क्वेश्चन है वो, कैसे करोगे, क्या करोगे? अगर तुम मान लो बॉस लेवल पे हो तो तुम एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, अगर बॉस लेवल पे नहीं हो, नीचे हो, तो क्या करोगे? तो आगे अभी कोर्स चलने दो तो बताएंगे क्या करना है। ऐसे क्वेश्चंस में स्टैंडर्ड पैटर्न सबके सब सेम आंसर लिखेंगे तो सबको सब सेम ही नंबर मिलेंगे सबको। यू विल हैव टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ। मतलब आई ऑलवेज से एथिक्स एंड ऐसे इसमें, और ऑप्शन, इवन ऑप्शनल, इन ऑप्शनल पेपर 2 आल्सो, मतलब मैं तो ऑप्शनल पेपर 1 भी मानता हूं कि इन दीस 4 पेपर्स ना, मतलब इफ यू ट्राई टू राइट द सेम थिंग्स यू विल नॉट गेट मार्क्स, मतलब एब्सोल्युटली आई एम श्योर। तुम किसी का भी उठा लो, पक्का नहीं मिलेंगे, बिकॉज it becomes very boring to read the same things again and again,